Hello, welcome you all once again. This is fifth lecture of BMC, and now we'll discuss about remaining portion of mortar and then aggregate, and then I will start concrete. So in mortar we have discussed up to what are adulterants of mortar, what are the qualities adulterants should have, what are the basic function of adulterant in the mortar, then what qualities a good mortar should have, then what are the classification of mortar. Now I will discuss testing of mortar. Okay, so testing is done as per IS 2250. Testing of mortar is done as per IS 2250. This is the IS code according to which testing of mortar is done. Okay, two most important tests which are mentioned in IS 2250 are, first one is compressive strength test. Compressive strength test of mortar. Compressive strength test of mortar. How it is done? What is the standard procedure for compressive strength test of mortar? Now I will discuss. Okay, so here we have to make cubical specimen. So apparatus will be cubical specimen of size यहाँ पे होगा 5 सेंटीमीटर लाइक दिस. तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और हाइट भी 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द साइज ऑफ द क्यूबिकल स्पेसिमेन विच इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ द मोर्टार. नाउ इसके बाद लोडिंग के लिए CTM और UTM फॉर कंप्रेसिव लोडिंग, इसके लिए ये यूज होता है. एंड अ स्मॉल मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सीमेंट मोर्टार. मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ मोर्टार. ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन इन IS कोड. ठीक है, व्हाट इज दैट मिक्सर? यू कैन सी हियर व्हाट इज दैट मिक्सर. One small mixer is used to mix the mortar, and mixing should be done properly in this mixer like this. This is the mixer. This is the mixer. You can see here, this is the mixing bowl, which is written as mixing bowl, and it is the mixer in which mortar is prepared for the testing of compressive strength. So this is the small mixer which is used for the mixing. ठीक है. Now अब यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर देखते हैं. What is the procedure? So procedure for the testing, first of all, water content is to be determined. Water content is to be determined using flow table test. Okay, so to determine the water content, which amount of water to be used to make the cement mortar or any type of mortar, we have to conduct a flow test. And what is this flow test? Simple. A flow table is there like this, and this is the flow table arrangement on which mortar is placed in a conical specimen, and then this surface is raised and dropped. This surface is raised and dropped by 12.5 mm, and it is raised and dropped up to the condition when, after removing this cone, सबसे पहले इस cone को रखेंगे और cone में mortar fill करेंगे. This cone will be filled by the mortar, and then this cone is removed. And then 25 times 15 times jumping is done. 15 times rise and fall is given. And then mortar will spread. So if I will draw the top view like this, then you will find that this mortar will be like this. Initially it was something like this. तो पहले थोड़ा इसका डायमीटर कम होगा और बाद में वो इंक्रीज होगा, और इट शुड इंक्रीज एट लीस्ट ट्वाइस. सो दिस इज द कंडीशन कि ये जो इंक्रीज होना चाहिए, जो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ आना चाहिए, परसेंटेज इंक्रीज
in diameter should be 100 to 110%, 100 to 110%. For this condition, then corresponding moisture can be taken for the making of mortar. So this is the flow test. Actually होता क्या है कि मोटार में कोई फिक्स वाटर सीमेंट रेशियो नहीं होता। मोटार में जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो हम लोग फ्लेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, हम वर्केबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हर मोटार के लिए मटेरियल चेंज होने की वजह से फ्लोबिलिटी के अकॉर्डिंग मोटार परसेंटेज जो वाटर कंटेंट है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर जो भी मटेरियल हमने लिया है तो उसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने से पहले, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अगर हमें मोटार बनाना है तो उसमें हमें मॉइस्चर कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो मॉइस्चर कंटेंट हम कितना लेंगे, इसके लिए हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इस टेस्ट का नाम होता है फ्लो टेस्ट। और इस फ्लो टेस्ट में क्या करते हैं, ये फ्लो टेबल होती है, जिस फ्लो टेबल के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे बहुत सारा। तो ये फ्लो टेस्ट होता है। अब इस फ्लो टेबल के ऊपर हम लोग कोन रखते हैं, एक इस तरह से छोटा सा कोन रखते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटार फिल कर देते हैं। मोटार फिल करने के बाद ये कोन रिमूव कर देते हैं और इसको हम लोग राइज एंड फॉल कराते हैं 15 टाइम्स एटलीस्ट। जब हम 15 टाइम्स एटलीस्ट उसको राइज एंड फॉल कराते हैं तो इसके बाद यहाँ पे ये मोटार स्प्रेड होता है और जब ये स्प्रेड होता है तो हम देखते हैं कि कितना स्प्रेड हुआ है। तो अगर ये 100% से ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, जैसे इनिशियल डाया 25 था, अगर ये 50 हो गया तो हम कहते हैं ठीक है ये वाटर कंटेंट, और यही वाटर कंटेंट जो हमने मिला के ये किया था उसी वाटर कंटेंट के साथ हम मोटार बनाते हैं। अगर मान लीजिए स्प्रेड इतना नहीं हुआ तो हम लोग वाटर कंटेंट बढ़ा के नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। सो इट इज ट्रायल एंड एरर, इस तरह से हम ट्रायल करते जाते हैं और फाइनली एक वाटर कंटेंट हमें मिल जाता है। सो द वाटर content determined using flow test is used in making of mortar। ठीक है, in making of mortar। then this mortar is filled in the mold, and after 24 hours demolding is done, and cubical specimens are placed in curing tank for the desired duration। ठीक है, और वो desired duration क्या होगी, 28 days normally। so we'll place the cubical specimen, पहले उसको डिमोल्ड करके मोल्ड से बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम उसको प्लेस कर देंगे क्यूरिंग टैंक के अंदर। कितने दिन के लिए, कम से कम 28 दिन के बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल फाइंड इन द रिजल्ट में हमें मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड दैट विल बी मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड divided by cross section area। so this is very simple and it will be in MPa। so this is the basically compressive load or this is the compressive strength which we can define from here। now the result should be matched with the grade of the cement। like मैंने आपको कल बताया था, as per IS 1905 there are different grades of cement, there are different grade of mortar। so according to that, if we are making any particular type of grade of mortar, then this final result should match with that minimum grade। जैसे 3.5 MPa तक की स्ट्रेंथ हमें उस ग्रेड में चाहिए, तो ये जो स्ट्रेंथ आपकी आनी चाहिए that should be more than or equal to 3.5। so this is the basic concept of compressive strength test of mortar। now I will discuss consistency test of mortar। It is also done as per IS 2250। in this case apparatus is a conical stand with conical container। इसमें एक conical plunger होता है, कॉनिकल
और उसका एक कोनिकल कंटेनर भी होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें कि ये apparatus आपको दिखता कैसा है, देन यू कैन फाइंड it will look like this. This is the basically standard cone apparatus. It is called as standard cone apparatus, and this standard cone apparatus is used to testing of consistency of the mortar. Now you can observe here it is dial gauge. Dial gauge is to read the reading कि कितना penetration हुआ है. This is the conical plunger. This is the penetrating cone. You can say here penetrating cone, conical plunger जिसको हम लोग कह रहे हैं penetrating cone, और this is conical container जो हम लोग नीचे देख रहे हैं. ये जो penetrating cone होता है इसका टॉप डाया जो होता है वो 75 mm होता है. This is 75 mm and this height is 150 mm. This height is 150 mm. तो टॉप डाया is 75 mm and this height is 150 mm. Now this डाया is 150 mm, ये 150 mm होता है and this height is 180 mm like this. तो ये होता है इसमें. अब हम लोग इसमें करते क्या हैं कि जो भी मोटार है जिसका कंसिस्टेंसी हमें टेस्ट करना है उसको हम इस कोनिकल कंटेनर के अंदर फिल कर देते हैं. प्रोसीजर में विल फिल द मोटार इन दिस कोनिकल कंटेनर, और कोनिकल कंटेनर के अंदर फिल करने के बाद हम इसमें ये पेनिट्रेटिंग कोन इंसर्ट करते हैं फ्रीली. ये जो पेनिट्रेटिंग कोन होता है इसका वेट होता है 300 ग्राम. ये 300 ग्राम का कोनिकल पेनिट्रेटिंग कोन होता है. अब नाउ इट इज अलाउड फ्रीली टू इंसर्ट इनसाइड दिस कोनिकल कंटेनर. ये फ्रीली इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता है. तो इफ मोटार हैव सफिशिएंट consistency, means it is having sufficient moisture content, then this penetrating cone will easily penetrate, and the penetration will decide कि this motor is suitable for which purpose. So there are different prescribed limit in IS 2250 कि हम उसमें पेनिट्रेट करा के देखते हैं, और पेनिट्रेट कराने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है. दैट वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द टेबल गिवन इन IS 2250, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जैसे अगर हमें पॉइंटिंग वर्क करना है तो पॉइंटिंग वर्क के लिए कितना कंसिस्टेंसी चाहिए. आई विल पिक दैट फ्रॉम IS कोड एंड आई विल सी हियर कि इफ कंसिस्टेंसी इज दैट then it's good. If it is not matching with that, then I will increase the water content like this. So this is simple consistency test. It is not very typical test. It is सिंपल टेस्ट. इसमें हम लोग इस तरह से कोन पेनिट्रेट करा के देखते हैं कि कितना पेनिट्रेशन हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पेनिट्रेशन विल सेलेक्ट द सुटेबिलिटी ऑफ द मोटार कि वो मोटार हम कहाँ यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ मोटार. नाउ नेक्स्ट टेस्ट आई विल डिस्कस टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ मोटार. टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ मोटार. This tensile strength test of mortar is similar to tensile strength test of cement जो हमने देखा था, याद होगा आपको, जिसमें हम लोग ब्रिकेट्स बनाते थे और यहाँ पे उस ब्रिकेट को हम लोग टेंसाइल लोडिंग लगा के इस तरह से ब्रेक करते थे. सिमिलर टेस्ट इज कंडक्टेड हियर टू चेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मोटार. सिमिलर टेस्ट इज कंडक्टेड हियर टू चेक द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मोटार. सो हियर ऑल्सो यू कैन से apparatus will be briquettes, but these briquettes will have something slightly different shape, different size. Like these briquettes which are used for mortar are having slight different dimensions. So we'll use these briquettes. These are the briquettes actually. These are the briquettes used for the mortar tensile testing. So these are the briquettes. Here you can see here this is 38 mm. Actually it was in cement testing it was 25.4 mm. Now it is increased somehow. It is increased. थोड़ा सा ये इंक्रीज किया जाता है मोटार के केस में. Now it is 38 mm. So it is 38 mm. और यहाँ पे आपको पता है कि in this case I am not going in detail of this test. यहाँ पे आपने इस तरह से यहाँ पे हम लोग हुक लगा देते हैं, यहाँ से इसको पुल करते हैं इस तरह से, और इसको हम इस तरह से पुल करते हैं. अब ये फेल कहाँ से होगा? जब हम इस तरह से पुल करेंगे तो ये फेल यहाँ से होगा, और जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन एट द फेलियर वो 38 इंटू 38 ये आपका mm में इस तरह से क्रॉस सेक्शन होगा लाइक दिस. तो यहीं से फेलियर होगा. दिस इज सिंपल टेस्ट. दिस इज ब्रिकेट. ये जो स्पेसिमेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिकेट. इसका डेप्थ वेरी नहीं करता. डेप्थ इज कांस्टेंट बट विड्थ इज वेरिंग. एंड व्हाई विड्थ इज वेरिंग? टू जस्ट फिक्सिंग दिस ब्रिकेट इन द ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन. जो ब्रिकेट टेस्टिंग मशीन होती है उसमें ऐसे जॉ बने होते हैं, उनमें फिक्स करने के लिए ये इस टाइप का इसका हम प्लान बनाते हैं, और इसमें हम लोग लोड लगा देते हैं, और आफ्टर लोडिंग विल गेट द वैल्यू ऑफ लोड. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट the tensile strength. From here we can calculate
the tensile strength, and that tensile strength will be equal to maximum tensile load divided by cross section area at the failure. ठीक है, this is the basic formula for the tensile strength. So this is the tensile strength of the motor. So these are some important tests which have to be conducted for testing of motor. Now I will discuss one more thing which is related to motor, that is suitable proportion of motor in different constructions. तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन में सुटेबल प्रोपोर्शन क्या रखना चाहिए. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट केस, ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं. दिस प्रोपोर्शन मे वेरी एज पर द फील्ड कंडीशंस, बट यस जनरली इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस. ये हम लोग यहां डिस्कस करेंगे. सो हियर आई विल शो यू कि व्हाट इज द सुटेबल प्रोपोर्शन वी कैन टेक, लाइक हियर दिस. सो हियर आई विल राइट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एंड हियर आई विल राइट द प्रोपोर्शन. What will be the proportion? So first type of construction is like pointing. I will discuss here pointing. So pointing करते हैं हम लोग मोटार के हेल्प से. So pointing should be done with which proportion of motor? This is the question. So first you should understand what is this pointing. आपने नाम सुना होगा, but you should understand what is this pointing. So I will discuss here what is pointing. Pointing is something like this. Like this is the brickwork. For example, this is the brickwork. Like this, I am drawing the cross section of the brickwork like this. This is the brickwork like this. This is the cross section of the brick wall. ठीक है, this is the cross section of brick wall. In the joints of this brick wall there will be mortar. यहाँ पे क्या होगा, मोटार होगा, ये आप सब जानते हैं. यहाँ पे मोटार होता है और ये ब्रिक वॉल का सरफेस है. दोनों साइड आप देख सकते हैं, देयर आर सरफेसेस ऑफ ब्रिक. तो यहाँ पे एक सरफेस है और एक सरफेस यहाँ पे है. मान लीजिए दिस इज आउटर सरफेस, ये दिस इज आउटर सरफेस. अब इस आउटर सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अस. इसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द सराउंडिंग, अदरवाइज दीज जॉइंट्स आर द लोकेशंस फ्रॉम वेयर वाटर और एनीथिंग कैन एंटर. सो दिस इज द आउटर surface which we have to protect. So how we'll protect it? Generally, one simple method is just apply the layer of mortar over all these like this, and this is called as simply plastering. So one way to protect the outer surface is plastering. प्लास्टरिंग में हम क्या करते हैं, लाइक दिस. ये ग्रीन कलर का जैसा हमने दिखाया आपको, यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा लेयर, मोटार की लेयर लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड एज प्लास्टरिंग. एंड आई होप एवरीवन हैव ऑलरेडी सीन प्लास्टरिंग एनीवेयर, या कहीं पे भी जरूर देखा होगा. सो प्लास्टरिंग इज लाइक दिस, बट पॉइंटिंग इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टरिंग. नाउ नॉट व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट अप्लाई दिस लेयर लाइक दिस. अब मैं इस पे पूरे पे मोटार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मोटार का जो नीड है, जो जरूरत है मोटार की, दैट इज मेनली इन द ज्वाइंट्स. वो यहाँ ज्वाइंट्स पे ही उसकी मेन नीड है, पूरे पे उसकी नीड है बट वो कम है. तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट्स पे मोटार से इसको सील कर दूं. ज्वाइंट्स पे मोटार का एक इस तरह से करके कुछ डेप्थ तक रेकिंग कर देते हैं, कुछ डेप्थ तक यहाँ लूज मोटार हटा देते हैं, तो कुछ डेप्थ तक एंटर करके इस तरह से मैंने जो ज्वाइंट्स हैं उन्हीं को सील कर दिया और बाकी पोर्शन पे मोटार अप्लाई नहीं किया. आई एम सीलिंग द ज्वाइंट्स ओनली, आई हैव नॉट अप्लाइड द मोटार थ्रू आउट द आउटर सरफेस लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड एज पॉइंटिंग. तो इसको अब हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज पॉइंटिंग. This is called as pointing. So like this we can apply the mortar only on the joints, not throughout the surface, not throughout the bricks outer surface or inner surface, then it is called as pointing.
मीन्स पॉइंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीलिंग द ज्वाइंट्स. वी आर बेसिकली सीलिंग द ज्वाइंट्स. हम लोग ज्वाइंट्स को सील कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज पॉइंटिंग. एज सिंपल एज दैट. सो हियर what should be the proportion of the mortar in the pointing? So high quality mortar is used for the pointing because high strength is required. So here pointing में 1:1 से लेके 1:2 सीमेंट मोटार यूज होता है. दिस इज द मोटार विच इज यूज्ड. दिस इज सीमेंट मोटार और रेशियो क्या होता है 1:1 से लेके 1:2 का सीमेंट मोटार यहाँ पे यूज होता है. दूसरा अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखें अगर ग्राउटिंग इन रॉक्स कैविटी, अगर हम लोग कैवर्नस रॉक के कैविटी में ग्राउटिंग कर रहे हैं तो कैसा मोटार हमें यूज करना चाहिए. सो फॉर दिस इट इज 1:1.5. अब यहाँ पे रॉक की ग्राउटिंग कर रहे हैं हम, तो रॉक जैसा ही हमें मोटार स्ट्रॉन्ग चाहिए. सो रेशियो इज जनरली टेकन एज 1:1.5 फॉर ग्राउटिंग इन रॉक्स. ग्राउटिंग इन रॉक्स का मतलब क्या होता है? When you are doing construction in the rocky area, when you are making tunnel through rock, at some places there will be faults or you can say voids inside the rock, and those voids can be filled with the mortar, and that mortar should have proportion of 1:1.5. This is the standard thing. Now next, DPC or pavement construction. अगर हम DPC कर रहे हैं या pavement construction कर रहे हैं मोटार से कहीं पे, DPC, you know what is DPC? It is the dam proof layer. It is the layer which is provided over plinth to avoid the flow of moisture or the capillary action of moisture should not reach the substructure of the superstructure of the building. So for that DPC is provided throughout the plinth beam area. So this is the DPC and pavement construction like this. इस case में we can use 1:2 mortar. In this case we should use 1:2 mortar. Now fourth case is simple gunniting, grouting, brickwork in superstructure, plastering on outer surface. So now see here, what is gunniting? Gunniting is very important operation, you should know it. What is gunniting? Gunniting is the process of application of mortar on the surface of the brick or concrete with the help of pressure gun. होता है क्या, कई बार जैसे आप मान लीजिए आप लाइनिंग कर रहे हैं टनल की लाइनिंग कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए रूफ पे मोटार अप्लाई करते हैं. जैसे ये बिल्डिंग है और इस रूफ, ये मान लीजिए कर्वेचर जैसा रूफ है, अब ये रूफ है, अब इस पे आप मोटार अप्लाई करना चाहते हैं. यू वांट टू अप्लाई द मोटार ऑन दिस. सो इट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि व्हेन यू विल प्लेस द मोटार लाइक दिस, ड्यू टू ग्रेविटी इट मे फॉल डाउन बिकॉज इट वॉन्ट सम टाइम टू सेट, और अगर हम उतना टाइम नहीं देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा. तो अब क्या करें इसको, ये इनर सरफेस है, क्या कर सकते हैं? देन वी कैन डू वन थिंग, वी कैन अप्लाई द मोटार विद नोजल लाइक गन. इस तरह की गन होगी और इसके थ्रू हम मोटार अप्लाई करेंगे लाइक दिस, एंड दिस इज मोटार एप्लीकेशन विद द प्रेशर. Then it is having some force, and which force will allow the motor to adhere here. यहां पे मोटार चिपक जाएगा. जब हम इसको फोर्स के साथ प्लेस करेंगे तो मोटार वहीं पे जाके फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा. तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एक तरह से हम यहाँ पे पूरे पे इस तरह की लेयर हम लगा सकते हैं. विल मेक अ protective layer throughout this with the help of this pressure gun. Then it is called as gunniting. So this is the process. Why it is called as gunniting? Because we are using gun. That's why it is gunniting. ठीक है. ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द जॉइंट्स या फिलिंग द वॉइड्स. लाइक ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है एंड समवेयर हियर, यहाँ पे अभी मान लीजिए कोई वॉइड्स आ गए लाइक दिस. अब ये वॉइड आ गया, अब इस वॉइड को हमें फिल करना है लाइक दिस. ये वॉइड आ गया, तो अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वॉइड को कैसे फिल करोगे?
अब आपका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, यहाँ वॉइड आ गया। अब इस वॉइड को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें मोटार इंसर्ट करेंगे, और ये जब हम मोटार इंसर्ट करेंगे तो उसको प्रेशर के साथ इंसर्ट करके इसको सील कर देंगे, यहाँ पे इसको पूरा फिल कर देंगे। देन दिस प्रोसेस ऑफ filling the mortar in the voids is called as grouting. So here we can do grouting also or gunniting also. Grouting, gunniting. Brickwork in superstructure means brickwork in upper structure, upper stories, and plastering on the outer surface. Outer surface is more prone to be get affected by the weathering action and other water penetration and air aberration. एयर भी आ रही है उसके कांटेक्ट में, वाटर भी आ रहा है उसके कांटेक्ट में, उस पर वेदरिंग भी हो रही है, एसिड रेन भी हो रही है। तो ऐसी जगहों पे ऑन द आउटर सरफेस वी शुड यूज बेटर क्वालिटी प्लास्टर एज कंपेयर टू प्लास्टर टू बी यूज्ड इन इनर सरफेस। सो हियर यू कैन सी, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो किस रेशियो का मोटार यूज कर सकते हैं हम लोग? यूज कर सकते हैं 1:3 से 1:4 का सीमेंट मोटार यूज कर सकते हैं। 1:3 से 1:4 का सीमेंट मोटार यूज कर सकते हैं, दिस इज सीमेंट मोटार। और 1:2 से 1:3 का हम लोग इसमें लाइम मोटार भी यूज कर सकते हैं। अगर लाइम मोटार है तो ये हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द जनरल गाइडलाइन। नेक्स्ट, फिफ्थ, अगर हम लोग नॉर्मल ब्रिक वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रिक वर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग नॉर्मल ब्रिक वर्क, नॉर्मल ब्रिक वर्क, या फिर ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, और प्लास्टरिंग ऑन आउटर सरफेस, प्लास्टरिंग ऑन इनर सरफेस, सॉरी, प्लास्टरिंग ऑन इनर सरफेस। आउटर पे तो देख लिया, अब प्लास्टरिंग ऑन इनर सरफेस। तो इस केस में जो हम लोग मोटार यूज करते हैं, वी कैन यूज 1:5 to 1:6 मोटार, सीमेंट मोटार हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग लाइम मोटार यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज 1:3 to 1:4, ये लाइम मोटार यूज कर सकते हैं। सो दीज आर सम प्रोपोर्शन which we can use as per the requirement, like we can use 1:1, 1:2, or 1:1.5, 1:2, 1:3.4, or 1:5.6. So these are some standard proportions which we can use as per our requirement. So this is all about the mortar. Now I will move to aggregate. Okay, now I will move to aggregates. Okay, sand is also called as fine aggregate, but here we are talking about we are not talking about sand here. Here we are talking about coarse aggregate, coarse aggregate. And coarse aggregates are basically, these are broken chips of stone, broken chips of stone, broken chips of stone, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोन के चिप्स होते हैं जो हम लोग एग्रीगेट की तरह यूज करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि पुराने टाइम की बात अगर हम लोग करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, तो आपको दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, चाहे वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हों या इजिप्टियन पिरामिड्स हों या फिर फोर्ट्स हों, और आप ऑल ओवर इंडिया में घूम के देखें, बहुत सारे फोर्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जिसमें स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज हुआ है, स्टोन यूज हुआ है, बड़े बड़े स्टोन यूज हुए हैं, अलग अलग टाइप के स्टोन यूज हुए हैं, धौलपुरी स्टोन यूज हुआ है, तो अलग अलग टाइप के स्टोन यूज हुए हैं। बट नाउ अ डेज अगर आपको मैं बोलूं कि तुम्हें घर बनवाना है, तो क्या आप स्टोन मंगा के सबसे पहले स्टोन खरीदते हैं? क्या स्टोन से आप घर बनवाते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, हम तो स्टोन नहीं यूज करते, हम कंक्रीट यूज करते हैं या स्टील यूज करते हैं। हाँ, स्टोन यूज कर सकते हैं फ्लोरिंग के लिए, स्टोन यूज कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए, स्टोन यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, बट हम स्टोन अब स्ट्रक्चर पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि क्यों नहीं करते? पहले तो बहुत करते थे, पहले आप स्टोन का यूज बहुत ज्यादा करते थे, और अब आप स्टोन का यूज कम कर दिए, या स्टोन को आप एज ए स्ट्रक्चरल पर्पसेस यूज नहीं करते हैं। तो क्या ये बात सही है?
क्या हम स्टोन यूज नहीं कर रहे हैं? क्या हमने स्टोन का यूज कम कर दिया है? और अगर कम कर दिया है तो क्यों कर दिया है, या नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हम स्टोन को पहले यूज करते थे, हम उस तरह से तो स्टोन अब यूज नहीं करते, क्योंकि पहले हम स्टोन को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते थे। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? स्टोन को हम एक ब्लॉक के फॉर्म में यूज करते थे और ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक अरेंज करके हम बिल्डिंग बनाते थे, जैसे स्टोन ब्रिक जैसा यूज होता था। बट आजकल हम उसको स्टोन को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्वेश्चन इज क्यों नहीं करते? तो देखिए रीजन क्या है। आजकल हमें हाई राइज बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। दूसरा, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तीसरा, हमें अपना डिजायर्ड शेप चाहिए बिल्डिंग में, और ये तीनों चीजें स्टोन फिलफिल नहीं कर सकता। स्टोन के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन जब हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज करेंगे तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। दूसरी चीज, स्टोन को कोई भी शेप प्रोवाइड करना ये इतना आसान काम नहीं है, बट ये आसान काम हम लोग कर सकते हैं, इसको आसान बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंट्रोड्यूस करनी है स्टोन में, तो हमें उसके थ्रू रेनफोर्समेंट पास कराना पड़ेगा। स्टोन के थ्रू रेनफोर्समेंट पास कराना पड़ेगा, और ये काम आसान नहीं है। तो बताइए, रेनफोर्समेंट कैसे पास होगा स्टोन के थ्रू? स्टोन के थ्रू रेनफोर्समेंट एक ही कंडीशन में पास होगा, अगर हम स्टोन को तोड़ दें। अगर हम स्टोन को तोड़ दें तभी तो उसके थ्रू रेनफोर्समेंट पास हो पाएगा। आप कहेंगे यस सर, तो हम उसको तोड़ के और उसका हम एग्रीगेट बना देते। तो बेसिकली स्टोन का जो बिल्डिंग ब्लॉक था, अब जो स्टोन एक ब्लॉक के फॉर्म में था, पूरा एक सॉलिड ब्लॉक था, हमने उसको छोटे छोटे चिप्स में तोड़ दिया। और इन चिप्स में तोड़ने का फायदा देखिए, अब इन चिप्स के थ्रू हम रेनफोर्समेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम इनके थ्रू रेनफोर्समेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम इनको जो शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं, क्योंकि इन चिप्स को हम लोग एक सस्पेंशन बना लेंगे, मोर्टार के साथ मिक्स कर देंगे तो एक सस्पेंशन बन जाएगा जिसका नाम कंक्रीट होता है। और कंक्रीट को जो शेप देना चाहें आप वो शेप दे सकते हैं। बेसिकली हमने किया क्या है कि स्टोन को ऐसा नहीं कि हम यूज करना बंद कर दिए हैं, स्टोन को यूज करने का तरीका बदल गया है। स्टोन को हम पहले बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज करते थे, और आज हम स्टोन को उसको कंक्रीट में एग्रीगेट की तरह यूज करते हैं, और उन एग्रीगेट्स को ब्रेक कर देते हैं, और उन एग्रीगेट्स के बीच में हम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उन एग्रीगेट को हम जो शेप देना चाहें वो शेप भी दे सकते हैं, इसीलिए हम उनको एग्रीगेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों के पास मान लीजिए एक ये स्टोन है, ठीक है। अब इस स्टोन को हमें, ये स्टोन है रेक्टेंगल, और हमें बनाना है इसको सर्कुलर। हमें शेप चेंज करना है इसका। ये रेक्टेंगुलर है और मैं चाहता हूं कि ये ऐसा सर्कुलर बन जाए। तो बताइए ये कैसे बन सकता है? ऐसे तो हम इसको सर्कुलर नहीं बना सकते क्योंकि ये स्टोन है, लेकिन एक तरीका है कि मैं क्या करूं कि इस स्टोन को, ये जो रेक्टेंगल है, इसको मैं इस तरह से क्या करता हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब देखिए, अब ये इसमें जब इस तरह से मैंने कट कर दिया तो ये इस तरह का कोई टुकड़ा बन गया, इसमें छोटे छोटे टुकड़े बन गए, इस तरह से टुकड़े बन गए। तो ये बहुत सारे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। अब इन बहुत सारे टुकड़ों को मैंने क्या किया, मैंने एक साथ इकट्ठा किया। ये सारे टुकड़ों को, मतलब यहाँ से इस स्टोन को तोड़ा और क्या बना दिया, इसको तोड़ के ये टुकड़े बना दिया, एग्रीगेट्स बना दिया। ठीक है, ये स्टोन जो था, उस स्टोन को हमने, ये जो स्टोन था इसको हमने तोड़ा और ये क्या बना दिया, एग्रीगेट। नाउ अब ये जो एग्रीगेट था, अब ये हमने कंटेनर लिया, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर इस एग्रीगेट को फिल कर दिया। ठीक है, इस एग्रीगेट को फिल कर दिया। साथ में अब देखिए, एग्रीगेट्स को फिल तो कर देंगे, तो एग्रीगेट्स को तो चाहे जैसे आप जिस शेप में फिल कर सकते हैं। तो अब सिलिंड्रिकल जैसा शेप तो आ गया, लेकिन अब एग्रीगेट्स अभी तो अलग अलग हैं, अभी तो वो सॉलिड मटेरियल बने नहीं, वो तो अलग अलग पार्टिकल है। तो जब एग्रीगेट्स को मैंने इनको फिल किया, लाइक दिस, एग्रीगेट्स को फिल किया, फिर इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इस तरह से एग्रीगेट्स इसमें फिल हो गए, वो सिलिंड्रिकल शेप में एग्रीगेट्स फिल हो गए।
ठीक है। अब इसके बाद इनके बीच में अभी भी वॉइड्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, उनको फिल करने के लिए इसके अंदर हमने मोटार इंसर्ट कर दिया लाइक दिस। इनके बीच में हमने एक मोटार की मैट्रिक्स डाल दी। मोटार में क्या हुआ, सीमेंट और सैंड और वाटर, इस तरह से हमने एक मोटार की मैट्रिक्स डाल दी। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मटेरियल था, इसमें जो भी वॉइड्स थे वो वॉइड्स भी फिल हो गए और ये पूरा का पूरा सिलेंडर इस मटेरियल से भर गया। और उसके बाद हमने इस तरह से ये पूरी मैट्रिक्स बना दिया हमने, और इसके बाद हमने ये ग्रीन वाला सिलेंडर को हटा दिया। तो अब आपको, जब आपने ये ग्रीन वाला सिलेंडर यहाँ से हटा दिया तो आपको क्या मिला, क्या ये इस टाइप का एक शेप मिला? बिल्कुल मिला। और ये जो शेप मिला ये बेसिकली ये क्या है, कंक्रीट के थ्रू ही ये शेप मिला हमें। तो जो शेप हम देना चाहें, और इसके अंदर आप चाहें तो एक रेनफोर्समेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं, सीधा सीधा ये एक रेनफोर्समेंट भी इंसर्ट हो गया। तो ये क्या बन गया, एक रेनफोर्समेंट जैसे ही लगाया आपने, ये बन गया रेनफोर्स्ड कंक्रीट। इट बिकम रेनफोर्स्ड कंक्रीट, आपने इसको रेनफोर्स्ड कंक्रीट बना दिया। तो इस तरह से ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट बन गया, और इसमें आप जो स्ट्रेंथ इसको मिलनी चाहिए वो स्ट्रेंथ आप इसको दे दिए, और इस तरह से इसको जो शेप चाहिए वो आप शेप दे दिए। अब लेकिन देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, अगर मैं अब इसको ऑब्जर्व करूंगा, ये इसका जो बाहरी हमने एक कवर लगाया था वो हटा दिया, अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, जब ये सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो अगर मैं अब इसको ऑब्जर्व करूंगा तो देखूंगा कि ये स्टोन था और ये भी स्टोन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन अब इसका शेप बदल चुका है, और ये भी तो स्टोन जैसा ही दिख रहा होगा। ये कुछ ऐसा जो है, जो इस तरह का है और जो इस तरह का है, ये भी एक स्टोन की तरह ही दिख रहा है लाइक दिस, ये स्टोन की तरह ही दिख रहा है, और स्ट्रेंथ भी इसमें है, हार्डनेस भी इसमें है, टफनेस भी इसमें है, तो ये तो स्टोन की तरह ही है। बट ये स्टोन जो है ये नेचुरल स्टोन था, ये जो था स्टोन ये नेचुरल स्टोन था, ये नेचुरल स्टोन था, ये मैंने नहीं बनाया था, ये नेचुरल स्टोन था। लेकिन मैंने ये जो स्टोन है ये मैंने खुद ही बनाया है, तो ये कौन सा स्टोन हो गया, आर्टिफिशियल स्टोन हो गया। तो आर्टिफिशियल स्टोन बेसिकली है क्या, कंक्रीट ही तो है। तो कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन। आप यहां से समझ सकते हैं कि कंक्रीट क्या है, बेसिकली कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन। कंक्रीट आर्टिफिशियल स्टोन ही तो है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन, सो यू कैन सिंपली से सर कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन। ठीक है। और कैसे बना कंक्रीट समझ में आया आपको, क्यों बना कंक्रीट, इसलिए बना क्योंकि हम जो शेप देना चाहें वो शेप दे सके, उसमें रेनफोर्समेंट इंसर्ट कर सकें, जिससे कि हम अपना डिजायर्ड शेप का स्ट्रक्चर बना सके, हम उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी डेवलप कर सके। सो दीज आर द सम रीजंस ड्यू टू विच वी हैव ब्रोकन द स्टोन, वी हैव कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, एंड देन वी uses these chips as aggregate in the concrete to make the concrete like this. It can gain any shape. So this concept is basically the basic concept of the use of aggregate in the concrete. अब देखिए समझने वाली बात यह है कि अभी भी कंक्रीट जो है वो है क्या, आर्टिफिशियल स्टोन। तो जो हमारा पेरेंट स्टोन था और ये जो आर्टिफिशियल स्टोन है उसमें जो स्ट्रेंथ का एक रिलेशन होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसमें जो एग्रीगेट्स होंगे, एग्रीगेट्स का स्ट्रेंथ तो पेरेंट स्टोन के जैसा ही होगा क्योंकि ये उसी के एग्रीगेट्स हैं। बट जो हम ये ज्वाइंट बना रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब ये एग्रीगेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीगेट्स हैं यहाँ पे लाइक दिस, दीज आर एग्रीगेट्स। अब ये एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ में तो कोई कमी नहीं है, तो पेरेंट स्टोन के बराबर होंगे। लेकिन इन एग्रीगेट्स के बीच में हमने किया क्या है, इन एग्रीगेट्स के बीच में हमने मोटार फिल किया है, और ऐसे ज्वाइंट के इंटरफेस बनेंगे। जब लोडिंग लगेगी तो इस तरह से ज्वाइंट्स इसमें हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ज्वाइंट्स हैं, और ये ज्वाइंट्स फेल हो सकते हैं। तो एग्रीगेट्स भले क्रश ना हो, लेकिन एग्रीगेट्स के ज्वाइंट्स फेल हो सकते हैं। तो इन ज्वाइंट्स की स्ट्रेंथ हमें देखनी है, हमें इस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ हमें देखनी है। जैसे दो एग्रीगेट के बीच का ये ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ हमें देखनी है। तो ये जो ज्वाइंट है दो एग्रीगेट्स के बीच में, ये जो ज्वाइंट है दो एग्रीगेट्स के बीच में, इसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पर लोड लगाएंगे, जब हम इस पर अब इस तरह से लोड लगाएंगे, तो हो सकता है आपके एग्रीगेट क्रश ना हो, ये ज्वाइंट फेल हो जाए।
ऑब्वियसली ये ज्वाइंट फेल हो जाएगा। अगर ये ज्वाइंट फेल हो जाएगा तो एग्रीगेट्स बिखर जाएंगे, आपका कंक्रीट वापस एग्रीगेट जैसा बिखर जाएगा, तो उसमें कोई अब स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। तो इस तरह से इन ज्वाइंट्स की स्ट्रेंथ जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इन ज्वाइंट्स की क्या स्ट्रेंथ होती है, इसको अगर मैं एक एनालॉजी के थ्रू समझूं, एक एनालॉजी अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करें, एक एनालॉजी के थ्रू समझें, तो आपको बस जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बताऊं तो ये जो ज्वाइंट्स हैं ये बेसिकली दो ग्रेन्स के बीच के ज्वाइंट्स हैं, दो ग्रेन्स के बीच के ज्वाइंट्स हैं। तो आप एक सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे भी सॉइल भी एक ग्रेन होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं सॉइल भी, तो उनके बीच में ज्वाइंट्स बनते हैं। सॉइल भी एक ग्रेन है और सॉइल के पार्टिकल्स भी ग्रेन्स होते हैं और उनके बीच में एक ज्वाइंट बनते हैं। और इस ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ होती है, वो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ वहां डिफाइन की जाती है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi, इससे डिफाइन की जाती है वहां पे ये स्ट्रेंथ, कि ये जो शियर स्ट्रेंथ होती है दो ज्वाइंट्स के बीच में, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ है वो टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi से डिफाइन होती है। अब यहाँ पे भी हम इस स्ट्रेंथ को भी इसी एनालॉजी से, इसी फॉर्मूले से कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी जो ज्वाइंट के बीच की शियर स्ट्रेंथ है, दिस टाउ कैन बी डिफाइंड यूजिंग सी फॉर सीमेंट एक्शन। यहाँ पे सीमेंट कोहेशन, सी यहाँ पे मतलब क्या है, सीमेंट कोहेशन, और प्लस सिग्मा tan phi, phi क्या है यहाँ पे, phi इज बेसिकली, यहाँ पे phi इज बेसिकली इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एग्रीगेट्स, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एग्रीगेट्स। तो देखिए ध्यान से, ये भी जो आपका स्ट्रेंथ है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे C प्लस सिग्मा tan phi, C का मतलब कोहेशन होता है, आप पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, और phi का मतलब होता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल एंगल। तो ये फ्रिक्शन और कोहेशन पे डिपेंड करता है। सिमिलरली हियर ये एक कोहेशन, यहाँ पे भी कोहेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट में सीमेंट लगा हुआ है, और सीमेंट आपको क्या देगा, तो सीमेंट कोहेशन देगा। और दूसरा, ये जब ज्वाइंट एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है, जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करना चाहेगा, तो पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इनको रोकने का काम करेगा। तो यहां पे फ्रिक्शन, तो आप देख सकते हैं कि जो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ है वो दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक सीमेंट के कोहेशन पे और दूसरा इन एग्रीगेट्स के फ्रिक्शन पे। अगर एग्रीगेट्स का फ्रिक्शन ज्यादा है तो इंटरलॉकिंग बेटर होगी, और इंटरलॉकिंग बेटर होगी तो इजीली स्लाइडिंग नहीं होगी। और इसी तरह से अगर सीमेंट का क्वालिटी, सीमेंट का स्ट्रेंथ अच्छा है तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उससे भी स्लाइडिंग नहीं होगी। और अगर ये ज्वाइंट फेल नहीं होगा तो ये कंक्रीट भी इजीली फेल नहीं होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ में जितना रोल सीमेंट के कोहेशन का है, उतना ही रोल उसमें एग्रीगेट के फ्रिक्शन का भी है। सो दीज आर द फैक्टर्स, आप यहां से समझ सकते हैं, दीज आर द फैक्टर्स विच गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को गवर्न करते हैं। क्या है ये फैक्टर, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है। नाउ यू कैन कंक्लूड हियर कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन टू बेसिक थिंग्स। जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं वो सीमेंट के ऊपर होता है और दूसरा एग्रीगेट्स के ऊपर होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, अबाउट 70% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम इज फिल्ड बाय एग्रीगेट्स। तो लगभग 70% जो कंक्रीट का वॉल्यूम है वो एग्रीगेट से ही भरा होता है। तो एग्रीगेट्स तो उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं उसकी स्ट्रेंथ में और उसके बिहेवियर में। सो दैट्स व्हाई व्हेन आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स, सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एग्रीगेट विच आर गोइंग टू अफेक्ट द properties of concrete. What are the qualities of aggregates which are going to affect the qualities of concrete? Okay, so now next एक और property है concrete की, that is called as workability. strength पे तो इफेक्ट आपने समझ लिया, workability. अब ये workability क्या होती है? What is this workability? Listen carefully. workability का मतलब होता है, अगर आप इसको डिसोसिएट करके वर्ड्स को पढ़ें, संधि विच्छेद करके, तो पढ़ेंगे आप वर्क एबिलिटी, वर्क प्लस एबिलिटी। एबिलिटी वर्क करने की, एबिलिटी होगी टू डू द वर्क, बट हु विल डू दैट वर्क, कंक्रीट इटसेल्फ। ठीक है, सो वर्केबिलिटी इज इट्स एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू परफॉर्म इंटरनल वर्क डन। इट इज एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू परफॉर्म इंटरनल वर्क डन। जो कंक्रीट है उसकी एबिलिटी है टू परफॉर्म इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कंक्रीट को प्लेस किया
तो कंक्रीट को प्लेस करने में वो कंक्रीट खुद से कितना इजीली प्लेस हो रहा है, ये उसका इंटरनल वर्क डन है। मतलब मुझे एक्सटर्नली कम से कम मेहनत करनी पड़ रही है, हमें कम से कम मेहनत करनी पड़ रही है एक्सटर्नली, वो इंटरनली इजीली प्लेस हो जा रहा है। तो इजीनेस जो हमें मिलता है, हमें इजी लगता है क्योंकि कंक्रीट अपना काम खुद से कर रहा है। अगर कंक्रीट अपना काम खुद से करना बंद कर देगा तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, तो हमें इजी नहीं लगेगा। तो जो हमें इजीनेस लगता है, अगर कंक्रीट खुद से प्लेस हो रहा है, कंक्रीट खुद से कॉम्पैक्ट हो रहा है काफी हद तक, तो ये उसकी वर्केबिलिटी है। अब ऐसा क्यों होगा? जैसे अगर हम एक व्हीकल चला रहे हैं, एक साइकिल चला रहे हैं, तो कई बार साइकिल जब हम चलाते हैं तो साइकिल चलाने में हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ जाती है। हो सकता है कुछ उसमें रस्टिंग हो गई हो उसके बॉल बियरिंग्स में या कुछ, तो हमें ज़्यादा पावर लगानी होती है। तो हम लेके जाते हैं उसको मैकेनिक के पास, और मैकेनिक क्या करता है, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देता है, उसको स्मूथ बना देता है। तो जब हम दोबारा चलाते हैं साइकिल तो वो फास्ट चलने लग जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि कम एफर्ट में आपको ज्यादा वहां पे आउटपुट मिलता है। तो वो आप कहेंगे कि अब ये जो साइकिल है ये वर्केबल हो गई, कि हमें इजी लग रहा है चलाने में, हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है और साइकिल इजीली मूव कर रही है। तो सेम यहां पे भी कंक्रीट के साथ है कि कंक्रीट में भी हमें इजीनेस फील होनी चाहिए। और इजीनेस फील कब होगी? जब वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली वर्क करेंगे, इजीली स्लाइड होंगे। तो आप देखो, जैसे साइकिल की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसमें ग्रीसिंग किया, ऑयलिंग किया, मतलब किया क्या, उसमें लुब्रिकेशन किया। तो यहां पे भी हमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन। और यहां लुब्रिकेशन कैसे करेंगे, हम यहां ग्रीस तो ऐड नहीं कर सकते, तो यहां हम लोग लुब्रिकेशन कैसे करते हैं और किसके ऊपर लुब्रिकेशन करते हैं? टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी lubrication should be done. Lubrication should be there, should be more. And lubrication is done by water cement paste. जो वाटर और सीमेंट का पेस्ट है, ये हमारे लिए यहां पे ग्रीस का काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। एंड दिस is applied on surface of aggregates, अब ये जो लुब्रिकेंट है वो अप्लाई कहां होगा? लुब्रिकेंट तो पता चल गया, अब ये लुब्रिकेंट अप्लाई कहां होगा? तो ये अब लुब्रिकेंट अप्लाई होगा, दिस लुब्रिकेंट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट्स। सो बेसिकली सरफेस ऑफ एग्रीगेट, ये जैसे देखिए ये एग्रीगेट है और इसके ऊपर हमने लगा दिया लुब्रिकेंट। तो अब दूसरा एग्रीगेट भी है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा एग्रीगेट है और उस पर भी लगा दिया हमने लुब्रिकेंट। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। और अगर स्लाइडिंग आसान हो जाएगी तो आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे स्लाइडिंग इजियर होगी, वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो दिस इज सिंपल वे टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी। सो नाउ यू कैन सी हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इन वर्केबिलिटी ऑल्सो एग्रीगेट हैव इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है ये तो एग्रीगेट का ही है। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है एग्रीगेट का तो आपको ज्यादा लुब्रिकेंट चाहिए होंगे, मतलब आपको वर्केबिलिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्योंकि अगर आपका सीमेंट पेस्ट कांस्टेंट है तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लुब्रिकेंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन आपने सीमेंट कंटेंट तो जो सीमेंट कंटेंट है वो तो कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब वर्केबिलिटी घटेगी। और ऑन द अदर हैंड सरफेस एरिया अगर घटेगी तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हमारा टास्क है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, और ये सरफेस एरिया किसका है? ये एग्रीगेट का है। तो एग्रीगेट का सरफेस एरिया है, तो मतलब एग्रीगेट का रोल स्ट्रेंथ में भी होता है और एग्रीगेट का रोल वर्केबिलिटी में भी होता है। लेकिन यहां पे एक मजे की बात समझिए, जो रोल है वो कंट्राडिक्टरी है। यहां पे हमको अगर हम चाहते हैं बेटर स्ट्रेंथ मिले तो यहां हम चाहते हैं कि ये जो एग्रीगेट्स हों वो रफ हों, वो एक दूसरे के से इजीली स्लाइड नहीं हो, क्योंकि यहां हमें फ्रिक्शन चाहिए। और फ्रिक्शन चाहिए तो अगर फ्रिक्शन हमें यहां पे चाहिए, ध्यान से देख सकते हैं आप, यहां पे अगर हमें फ्रिक्शन चाहिए तो हम ये चाहते हैं कि एग्रीगेट्स एक दूसरे से इजीली स्लाइड नहीं होनी चाहिए, वो रफ होने चाहिए एग्रीगेट्स, वो एक दूसरे से स्लाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ वर्केबिलिटी वहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे इजीली स्लाइड होने चाहिए, मतलब यहां पे रफनेस कम होनी चाहिए, यहां पे सरफेस एरिया कम होना चाहिए। और जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो यहां पे रफनेस ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो हम यहां चाहते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और यहां चाहते हैं सरफेस एरिया कम होना चाहिए। ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं, तो ये हमें समझना है। एक्चुअली होता यही है कि अगर आप वर्केबिलिटी अच्छी चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो एग्रीगेट्स हैं वो स्मूथ हों, उनका सरफेस एरिया कम हो। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ अच्छी चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि एग्रीगेट्स जो हैं वो रफ हों, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रफ हों और उनके बीच का सरफेस एरिया ज्यादा हो। अब आप समझें कि
आप कौन सा एग्रीगेट सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ एग्रीगेट वी शुड सेलेक्ट। अब हमारे सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एग्रीगेट वी शुड सेलेक्ट, कौन सा एग्रीगेट हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देना है कि वर्केबिलिटी को प्रायोरिटी देना है। वर्केबिलिटी क्या है, इजीनेस है वर्किंग के लिए, तो हम लोग इजीनेस को प्रायोरिटी नहीं देते। जैसे आपने ठान लिया है कि वांट टू अपीयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपने ये ठान लिया है, तो आपने पहले ही अपना एम हाई कर लिया है। अब आपको ये नहीं सोचना है, आपको मेन फोकस अपने एग्जाम पे करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये रास्ता कठिन होगा या आसान होगा, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपने सोच लिया है कि हमें ये करना है, तो आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े ये करना ही करना है। तो यहां आपकी प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम देना, ना कि आपको आराम मिले। हाँ, अगर ये एग्जाम बड़े आराम से हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बट अगर आराम से नहीं हुआ तब भी तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका मेन एम स्ट्रेंथ है, मीन्स एग्जाम है। तो अगर हमने स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देनी है तो हम हमेशा रफ एग्रीगेट यूज करेंगे, हमेशा एंगुलर एग्रीगेट यूज करेंगे, हमेशा हम ज्यादा सरफेस एरिया का एग्रीगेट यूज करेंगे। क्योंकि हो सकता है उसमें हमें वर्केबिलिटी अच्छी ना मिले, हो सकता है हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़े, लेकिन हमारा एम वहां पे वर्केबिलिटी नहीं, हमारा एम वहां पे स्ट्रेंथ है। ऑन द अदर हैंड कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, भले ही मुझे चपरासी का ही एग्जाम मेरे से क्लियर हो, तो आपने यहां पे डिसाइड कर लिया कि मुझे वर्केबिलिटी पे फोकस करना है, मुझे कोई बड़ा एग्जाम नहीं देना, हमें अपने आराम पे फोकस करना है, मुझे अपनी वर्केबिलिटी आराम से काम करना है, आराम से पढ़ाई करनी है, देखते हैं जो एग्जाम होगा वो क्लियर हो जाएगा। मतलब यहां पे आपका फोकस क्या है, यहां पे आपका फोकस है कि हमें वर्केबिलिटी चाहिए, हमको इजीनेस चाहिए, हमको टफ चीज नहीं चाहिए। तो फिर आपका एग्जाम कौन सा क्लियर होगा वो भगवान जाने। तो वहां पे स्ट्रेंथ जो होगी वो आपकी कम हो सकती है या अफेक्ट हो सकती है या फिर उतनी रह सकती है, बट हाँ वर्केबिलिटी पे आपका फोकस है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि यू में यूज फाइनर एग्रीगेट्स, मीन्स आप यूज कर सकते हैं स्मूदर एग्रीगेट्स, लेस सरफेस एरिया का एग्रीगेट्स, लेस फ्रिक्शन का एग्रीगेट्स। तो ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। बट यस, कई बार वर्केबिलिटी कम होना ये हमारी प्रायोरिटी होती है, बट वो डिफरेंट स्पेशल केसेस होते हैं, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड केप्ट इन माइंड दैट देयर आर टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स, बट एज पर द प्रायोरिटी विल डिसाइड विच एग्रीगेट वी शुड यूज इन द कॉन्क्रीट। नाउ आई विल डिस्कस। तो यहां तक अब आपको कुछ बातें कॉन्सेप्चुअली समझ में आई होंगी। नाउ आई विल राइटिंग हियर द हेडिंग। द हेडिंग इज डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एग्रीगेट्स, qualities of aggregates which affects the properties of concrete. Different qualities of aggregates which affects the properties of concrete. तो क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है जैसे शेप ऑफ द एग्रीगेट। शेप ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का शेप नॉर्मली क्या हो सकता है, या तो वो लाइक दिस एंगुलर हो सकती है, या वो राउंडेड हो सकती है, या वो फ्लैकी हो सकती है। फ्लैकी का मतलब क्या होता है, कॉर्नफ्लेक्स देखा है आपने, कॉर्नफ्लेक्स तो आपने देखा ही होगा, ब्रेकफास्ट में यूज आप उसको हमेशा वो करते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स जब आप देखेंगे तो वो पतला बहुत होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है लेकिन पतला बहुत होता है। तो सेम इधर एग्रीगेट है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा दिख रहा है आपको लेकिन इसकी थिकनेस कम है, तो दैट इज फ्लैकी। वहीं फ्लैक्स से वर्ड आ गया फ्लैकी। ये है राउंडेड, ये राउंडेड एग्रीगेट है, और ये एंगुलर एग्रीगेट, दिस इज एंगुलर एग्रीगेट, और दिस इज राउंडेड एग्रीगेट, दिस इज फ्लैकी एग्रीगेट। नाउ विच एग्रीगेट विल गिव बेटर स्ट्रेंथ। अगर मैं पहले स्ट्रेंथ की बात करूं तो यू विल से एंगुलर एग्रीगेट विल गिव स्ट्रॉन्ग मिक्स, विल गिव स्ट्रॉन्ग मिक्स। ये आपको स्ट्रॉन्ग मिक्स देगा, बिकॉज मोर फ्रिक्शन एंड बेटर इंटरलॉकिंग, मोर फ्रिक्शन एंड बेटर इंटरलॉकिंग। तो ज्यादा फ्रिक्शन और बेटर इंटरलॉकिंग की वजह से ये आपको बेटर स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट है राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट विल गिव बेटर वर्केबिलिटी, विल गिव बेटर वर्केबिलिटी। वाई? बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया टू बी लुब्रिकेटेड, लेस सरफेस एरिया टू बी लुब्रिकेटेड। अब आपका लेस सरफेस एरिया है जिसको लुब्रिकेट करना है, लेस सरफेस एरिया टू बी लुब्रिकेटेड, तो इस केस में आपका वर्केबिलिटी इंप्रूव होगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें अगर सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, कॉन्सेप्ट यही रहेगा सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। तो अब आप मुझे बता दो रफ टेक्सचर अगर है तो क्या बेटर होगा। अब आप सोच समझ के बताना, अगर रफ टेक्सचर अगर है तो क्या बेटर होगा, स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी। स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी, आप कहेंगे सर स्ट्रेंथ होगा, इसमें क्या है, क्योंकि रफ टेक्सचर है, स्ट्रेंथ विल बी बेटर। अगर स्मूथ टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर है तो क्या बेटर होगा, आप कहोगे सर वर्केबिलिटी बेटर होगी, इसमें क्या सोचना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, साइज ऑफ एग्रीगेट। अगर साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो बताओ, अगर बिगर साइज एग्रीगेट्स हैं, बाकी सारी चीजें सेम हैं, जस्ट मैंने कंपैरिजन करना है, बिगर साइज एग्रीगेट्स हैं, और बिगर साइज का मतलब ये भी नहीं कि बोल्डर्स ला के रख देने, नहीं भाई, बिगर साइज है बट स्लाइटली बिगर है, बस कंपैरिजन के लिए दिखा रहे हैं। तो बिगर साइज एग्रीगेट्स हैं तो बताइए क्या ज्यादा होगा, और स्मॉलर साइज एग्रीगेट्स हैं तो क्या ज्यादा होगा। तो बताइए बिगर साइज एग्रीगेट में क्या ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी। यस, बिगर साइज एग्रीगेट में क्या ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ या वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्यों, क्योंकि एग्रीगेट्स बिगर साइज के हैं तो उनका नंबर कम होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट तो सेम होगा, दोनों मान लो 10 kg हैं, 10 kg ये भी है, 10 kg ये भी है। अब ये बड़े साइज के हैं, आजकल मैंगो सीजन है, आप जाते हैं मैंगो खरीदने, तो मैंगो अगर आप बड़े बड़े खरीदोगे तो 1 किलो में कम मैंगो आएंगे, और अगर आप छोटे छोटे मैंगो खरीदोगे तो 1 kg में ज्यादा मैंगो आएंगे। तो नंबर किस में ज्यादा होगा, व्हेन दे आर बिगर इन साइज। एंड जब ये बिगर इन साइज है, नंबर इनका ज्यादा है, तो इनका बिगर इन साइज है, नंबर कम है, तो सरफेस एरिया भी कम होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो स्मॉलर साइज में है तो क्या होगा, नंबर ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा होगी। सो दिस इज द बेसिक, यू शुड नो कि साइज ऑफ एग्रीगेट का क्या इफेक्ट होता है। बट यस, बाकी फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट रखने हैं, और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं एग्रीगेट्स को, उनकी साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, वो स्लाइट डिफरेंस करके हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज और देख लीजिए, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। ग्रेडिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो दो टाइप की ग्रेडिंग होती है, एक वेल ग्रेडेड होता है, और दूसरा होता है पुअरली ग्रेडेड। आप पढ़ेंगे इसको आगे। तो वेल ग्रेडेड में क्या होता है, सारे डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स आर अवेलेबल, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल होते हैं, दैट इज वेल ग्रेडेड। और पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है कि एक टाइप के पार्टिकल अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको यूनिफॉर्म ग्रेडेड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म ग्रेडेड। यूनिफॉर्म ग्रेडेड में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक साइज के पार्टिकल अवेलेबल हैं। वेल ग्रेडेड में डिफरेंट साइज के पार्टिकल अवेलेबल हैं, और इस तरह से अवेलेबल है कि उनमें वॉइड्स मिनिमम है, वॉइड्स उसमें मिनिमम है। तो वेल ग्रेडेड में क्या होता है, वॉइड्स मिनिमम है, सारे टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो यहां पे आपको पता है कि स्ट्रेंथ तो बेटर होनी ही होनी है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेंथ इसमें इंप्रूव होगी। और यहां पे स्ट्रेंथ कम होगी, यहां पे स्ट्रेंथ आपकी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्केबिलिटी पे बताइए, वर्केबिलिटी किसमें बेटर होगी। तो ये हमने देखा है कि वर्केबिलिटी इज ऑल्सो बेटर इन वेल ग्रेडेड, वर्केबिलिटी इज ऑल्सो बेटर इन वेल ग्रेडेड। तो यहां पे वर्केबिलिटी भी बेटर होती है। क्यों बेटर होती है, क्योंकि वॉइड्स कम होने की वजह से जो भी आपका सीमेंट पेस्ट रहता है, जो कि लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, दैट सीमेंट पेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट, and if it is available on the surface of aggregate, then only it will act as a lubricant। क्योंकि अगर ये voids में चला गया then it will not act as a lubricant। इसीलिए ये क्या होता है कि surface of the aggregate के पे available होता है, और इसी वजह से इसमें आपको workability भी अच्छी मिलती है और strength भी अच्छी मिलती है। So these are the factors which affect the strength and the workability of the aggregate। Now I will discuss next heading which is very important। Now I will discuss that is testing of aggregates। Now I will discuss testing of aggregates। So this testing of aggregates you will also study in the highway material, because aggregate is also a very essential part of highway engineering, but still I will discuss some tests which are important from BMC point of view, so I will discuss those, and some remaining tests will be covered in highway engineering. Here testing of aggregates, I will discuss first test, and these tests are done as per IS 2386. This is the IS code as according to which we perform this test. First test is fineness modulus of the aggregate. Fineness modulus of the
एग्रीगेट। ठीक है, फाइननेस मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और गेट में भी, ईएससी में भी, हर जगह पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो पहले तो ये समझना होगा कि ये फाइननेस मॉडुलस है क्या, ये क्यों डिफाइन करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं वो तो हम आते हैं उसके ऊपर, बट क्यों करते हैं, व्हाट इज दिस फाइननेस मॉडुलस, वेयर इट इज यूज्ड, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो देखिए ध्यान से समझिए, आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीटेक कर लिया है आपने, और आप टहलते टहलते कहीं पे जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे कंक्रीट का प्लांट है, कंक्रीट बैचिंग प्लांट है, जिसको हम लोग कंक्रीट प्लांट बोलते हैं। वहाँ पे आप बैचिंग प्लांट पे पहुँच गए, बैचिंग प्लांट पे आप गए, वहाँ पे कोई इंजीनियर इंचार्ज है, वो आप उससे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बात किया, उसने पूछा आपका परिचय, आपने बोला कि हमारा नाम ये है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपने क्वालिफिकेशन में बताया कि हम इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं। वो बोलेगा ठीक है, सिविल इंजीनियर हो तो एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दे दो। बैचिंग प्लांट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे बैचिंग कंक्रीट बनाने के लिए रॉ मटेरियल रखे होंगे। वहां पे रॉ मटेरियल क्या होता है, पूरा बल्क होता है, ट्रकों का मटेरियल होता है। तो 2 ट्रक हो सकता है वहां पे, 2-3 ट्रक सैंड रखा हुआ हो, 2-3 ट्रक एग्रीगेट रखा हुआ है, वहीं पे पूरा बल्क रखा हुआ है एग्रीगेट का। और वो आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो बताइए ये जो बल्क ऑफ एग्रीगेट रखा हुआ है, ये पूरा ढेर रखा हुआ है एग्रीगेट्स का, ऐसा बहुत सारा ढेर रखा हुआ है एग्रीगेट का, बताओ इसका साइज क्या है एग्रीगेट का। और आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहा है, आपको कोई वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहा, बोला ये एग्रीगेट है तुम्हारे सामने, ऑल एग्रीगेट्स आर योर्स एंड नाउ फाइंड द साइज ऑफ द एग्रीगेट। आपका हालत खराब हो जाएगा। क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे साइज ऑफ एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट तो लाखों की संख्या में होंगे। अगर आप एक एक एग्रीगेट को लेके साइज तो मेजर कर नहीं सकते, दे आर मिलियंस इन नंबर। आप एक एग्रीगेट के साइज पे पूरे एग्रीगेट का साइज डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे एग्रीगेट एक शेप के, एक साइज के नहीं होंगे, कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई थोड़ा बड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। तो वहां पे एग्रीगेट के साइज में वेरिएशन होगा, शेप में वेरिएशन होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। नाउ ही विल आस्क यू अगेन, क्या हुआ भाई, सिविल इंजीनियर हो, बताओ एग्रीगेट का साइज क्या होगा। आप उसे कहोगे आप ही बता दो सर, वो बोलेगा मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुम सोचो कि पता कैसे करोगे एग्रीगेट। अब वही एग्रीगेट का साइज पता करने के लिए कोड ने आपकी मदद करी, और कोड ने बताया कि चलो अगर आपको एग्रीगेट का साइज पता करना है तो आपको फाइननेस मॉडुलस जैसा एक टर्म डिफाइन करना होगा, आपको फाइननेस मॉडुलस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि उस एग्रीगेट का साइज क्या है। और आप एग्रीगेट का एग्जैक्ट साइज तो कभी नहीं बता सकते, आप एवरेज साइज बता सकते हैं, आप एक रेंज बता सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि फाइननेस मॉडुलस इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एवरेज साइज ऑफ द सैंपल ऑफ द एग्रीगेट। बात समझ में आई? फाइननेस मॉडुलस इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एवरेज साइज ऑफ द एग्रीगेट। फाइननेस मॉडुलस एक नंबर है जो एग्रीगेट्स का एवरेज साइज बताता है। ठीक है, अब हाउ इट इज कैलकुलेटेड, नाउ लिसन। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अब मैं IS 2386 का प्रोसीजर फॉलो करूंगा, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसके लिए हमें सीव एनालिसिस करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे सीव को चलो अरेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सीव को अरेंज कर दिया लाइक दिस, इस तरह से हमने कुछ किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक सैंपल लेके आएंगे पहले। अब जिस एग्रीगेट का टेस्टिंग हमें करना है कि क्या साइज है, उस एग्रीगेट का एक सैंपल लेके आएंगे। तो सैंपल हमने वो ढेर सारा जो एग्रीगेट रखा हुआ था उसमें से हमने एक सैंपल निकाल लिया, और सैंपल साइज हमने ले लिया मान लो 1000 ग्राम। ठीक है, सैंपल साइज हमने ले लिया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का हमने सैंपल साइज ले लिया। अब इस सैंपल साइज को हम लेके आ गए और इसकी सीविंग कर रहे हैं। जब हम सीविंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सीव एनालिसिस हम करेंगे, तो सीव क्या क्या होंगे, 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75, 2.36 सब mm है, 1.18, नाउ 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन एंड 150 माइक्रोन। ये सीव होते हैं
जो हम इनको इस ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सो ये आपके सामने सीव हमने अरेंज कर दिए, ठीक है। अब ला के आप क्या करोगे, जो सैंपल साइज है 1000 ग्राम का, वो सैंपल इसके ऊपर पोर कर दोगे। यहाँ पे पोर करोगे और उसके सीविंग करोगे। सीविंग करोगे तो अब आप देखोगे कि हर सीव के ऊपर कुछ ना कुछ रिटेन होगा वेट, हर सीव के ऊपर कुछ ना कुछ वेट रिटेन होगा। तो हर सीव के ऊपर हम देखते हैं। तो मान लेते हैं 80 mm के ऊपर कुछ भी रिटेन नहीं हुआ, चलो ठीक है। 40 mm के ऊपर 25 ग्राम रिटेन हो गया, इस पे 75 ग्राम रिटेन हो गया, ठीक है। इधर आए 10 mm पे तो 100 ग्राम रिटेन हो गया। 4.75 पे आ गए तो 300 ग्राम रिटेन हो गया। अगर यहां आए तो 200 ग्राम रिटेन हो गया। फिर हम इसके नीचे गए तो यहां पे ये 2.36 है, इस तरह से है। 1.18 पे गए तो फिर से 100 ग्राम रिटेन हुआ। उसके बाद फिर इसके नीचे गए तो यहां पे फिर से आपको 75 ग्राम रिटेन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, यहां पे 75 ग्राम रिटेन हो गया और लास्ट में 50 ग्राम रिटेन हो गया। तो ये टोटल आप देख सकते हैं इस तरह से रिटेन हो गया। आई विल कैलकुलेट नाउ परसेंटेज रिटेन्ड। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और ये ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल लिया गया, मैं एक तरीका बता रहा हूं बस। तो ये हो गया आपका रिटेन्ड। अब परसेंटेज में निकालो तो इसका तो 0% आएगा, इसका 2.5% आएगा क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 देन इट इज 2.5। इसका 7.5 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, इट इज 30%। ये होगा 20%, ठीक है। ये होगा 10%, दिस इज 7.5% एंड दिस इज 7.5% एंड दिस इज 5%। तो लाइक दिस ये आपका परसेंटेज रिटेन्ड हो गया। ये प्रोसीजर दिया हुआ है, आप सैंपल से एग्रीगेट लेके आएंगे, उसकी सीविंग करेंगे, फिर रिटेन्ड वेट लिखेंगे, फिर परसेंटेज रिटेन्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। फिर आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। तो क्यूमुलेटिव 0, 2.5, यहां पे जोड़ोगे 7.5 तो 10 और जोड़ा तो 20, 30 और जोड़ा तो 50, फिर 20 जोड़ा तो 70, देन 80, फिर 87.5, फिर 95 और फिर 5 जोड़ा तो 100। ये हो गया। और इन सबको अब हम ऐड करके यहां करेंगे इनका समेशन। सो आई हैव टू यूज द कैलकुलेटर, आई विल यूज द कैलकुलेटर हियर। तो यहां पे आपको 2.5 प्लस 10 प्लस 20, नाउ यू शुड ऑल्सो यूज द कैलकुलेटर, आप करो अपने आप से। तो 2.5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 87.5 प्लस 95 प्लस 5. Now it become 420. Now it become 420. This is the number which is 420. Now I have calculated the summation. Once again I am checking this. Once again I am checking. No, it's wrong. Here it will be 95, then it is 100. Okay, so it is not 420, it's 515. Yes, it is 515. Please check the value. कहीं पे गड़बड़ है तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. आई एम राइटिंग हियर. सो दिस इज 515. Once again I will calculate here again. So I am checking here. शुरुआत से करते हैं. सबसे पहला है 2.5, then 10, then 20, then 50, 70, 80, 87.5, 95 and 100. Yes, so this is 515, correct. So this summation I get as 515. Now I will calculate the fineness modulus. So what is the formula of fineness modulus? ये तो हमने टेस्टिंग की, अब फॉर्मूला लगाएंगे. तो फाइनेस मॉडुलस का फॉर्मूला है फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू सम ऑफ cumulative percentage retained divided by 100. Then it become 515 divided by 100 and I am getting a value 5.15. This is the fineness modulus. एक नंबर हमें मिला and this is the fineness modulus. Now question is कि what this indicates? This 5.5 क्या indicate कर रहा है?
व्हाट दिस 5.15 इंडिकेट्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी भी इंटैक्ट है, हमारा क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द एग्रीगेट। तो अब देखिए ये 5.15 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज जस्ट अ नंबर एंड नंबर इज यूज फॉर द काउंटिंग। सो नाउ आई विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द बॉटम। तो 1 2 3 4 5 and this is 6. So this 5.15 is lying somewhere here. So this is the location, this location, this is 5.15. So here I can write here this 5.15 indicates, ये indicate करता है indicates that the size of aggregate is in between 2.36 and 4.75, is in between 2.36 to 4.75 mm. So this is the basically meaning of the फाइनेस मॉडुलस। ये फाइनेस मॉडुलस हमारा इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो भी आपका नंबर आएगा उससे काउंटिंग करेंगे आप, और काउंटिंग करने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये किसके बीच में आपका लाई करता है। लास्ट ईयर गेट का क्वेश्चन था कि इफ एग्रीगेट फाइनेस मॉडुलस इज 4.3 देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ एग्रीगेट, एंड देयर वर 4 ऑप्शंस। तो उसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते। 4.3 होता तो देखिए 1 2 3 4, तो ये यहां आता 4.3, तो आंसर था एग्रीगेट साइज इज इन बिटवीन 1.18 टू 2.36 mm। एग्रीगेट साइज इन बिटवीन 1.18 से 2.36 mm के बीच में है। दिस वाज द आंसर। सो इन दिस मैनर we can calculate the average size of the sample by calculating the fineness modulus। अब एक मजे की बात देखो, अब fineness modulus अगर ज्यादा है तो fineness modulus अगर बढ़ेगा तो क्या फाइननेस बढ़ेगा कि कोर्सनेस बढ़ेगा, ये बताना। फाइननेस बढ़ेगा कि कोर्सनेस बढ़ेगा, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर फाइननेस मॉडुलस का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फाइननेस बढ़ेगा कि कोर्सनेस। अगर फाइननेस मॉडुलस 7 आ गया तो हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब कोर्सनेस बढ़ता है। तो फाइननेस मॉडुलस के साथ ये नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है। तो फाइननेस मॉडुलस अगर इंक्रीज होगा तो कोर्सनेस इंक्रीज होगा। इसका मतलब कि फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट विल बी मोर देन फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये ध्यान रखिएगा। फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट will be more than fineness modulus of fine aggregate। इसीलिए आप देखेंगे तो फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट अराउंड 6-7 के रेंज में होता है, और फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट अराउंड 2-3 के रेंज में होता है। सो दिस इज द बेसिकली क्राइटेरिया। अब कुछ नोट के पॉइंट्स हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। नोट के क्या पॉइंट हैं देखिएगा ध्यान से, कि सैंड हैविंग फाइनेस मॉडुलस मोर देन 3.2 is not suitable for concrete, is not suitable for concrete। ये हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि बहुत कोर्स सैंड हो जाएगी और वो कंक्रीट के लिए सुटेबल नहीं है। और इट इज सैंड इज क्लासिफाइड in 3 types on the basis of fineness modulus। फाइनेस मॉडुलस के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासिफाई होती है। पहला होता है कोर्स सैंड। ये कौन सी होती है कोर्स सैंड, जिसका फाइनेस मॉडुलस 2.9 से 3.2 होता है। नेक्स्ट होती है मीडियम सैंड, जिसका फाइनेस मॉडुलस 2.6 से 2.9 होता है। और फाइन सैंड, जिसका फाइनेस मॉडुलस 2.22 से 2.6 होता है। सो दीज आर सम फाइनेस मॉडुलस एज पर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड। So this is fineness modulus. I hope it is clear to all of you. Fineness modulus is a number which indicate the average size of the aggregate. So first of all, you will calculate the fineness modulus, and then you will start counting from the bottom. And according to that counting, you can say what is the average size of the aggregate or sand, whatever. So this is the first test that is called as fineness modulus test. Now I will discuss flakiness and elongation index test. Flakiness and elongation index test. It is also very important test for BMC point of view. So what is this flakiness and elongation index test? इसके लिए पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, जैसे एग्रीगेट का एक सैंपल हमने लिया, ठीक है, एग्रीगेट का सैंपल हमने लिया,
और उस एग्रीगेट में क्या होता है कि जैसे हमने एक सीव कोई कंसिडर कर लीजिए, जैसे 40 और 20 के बीच की बात कर रहे हैं, आप सीव अरेंज करते हैं लाइक दिस इज 80 mm, दिस इज 40 mm एंड दिस इज 20 mm for example, just for the example. Now you are passing the aggregates through all these. अब इनके थ्रू हम एग्रीगेट्स पास कर रहे हैं. अब कुछ एग्रीगेट होंगे जो 40 को पास तो कर जाएंगे लेकिन 20 पे रिटेन हो जाएंगे. ठीक, ये एग्रीगेट्स हैं जो 20 पे इस तरह से रिटेन हो गए. These aggregates are retained on 20 mm. Now, अब ये जो एग्रीगेट्स 20 mm पे रिटेन हैं, तो अब हम साइज क्या कहेंगे इनकी? अगर कोई पूछेगा आपसे तो एवरेज साइज क्या होगी? एवरेज साइज ये एग्रीगेट्स यहाँ पे फंसे हैं उनका साइज क्या होगा? एवरेज साइज ऑफ दीज एग्रीगेट्स बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो इनके बीच में उन्हीं की बात कर रहे हैं. विल बी, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज साइज, तो आप कहेंगे एवरेज साइज ऑफ ऑल दीज एग्रीगेट्स विल बी 20 mm to 40 mm. हम ये कहेंगे ना कि इनकी साइज जो है वो 20 mm से 40 mm के बीच में है, क्योंकि वो 40 से पासिंग है, 20 पे रिटेनिंग है, मतलब इनकी साइज 20 mm to 40 mm के बीच में है, ये हम आपसे कहेंगे. सो द साइज ऑफ दिस पार्टिकल इज बिटवीन 20 mm to 40 mm. ठीक है, हमने कह दिया कि इनकी साइज. और अगर कोई पूछे कि मीन साइज क्या हो जाएगी, तो मीन साइज आप निकाल सकते हैं 20 + 40/2, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 30 mm इनकी मीन साइज है. ठीक है, 30 mm इनकी मीन साइज है. तो हम कह रहे हैं कि एवरेज साइज ये एग्रीगेट्स की 30 mm है. लेकिन अब आप एक इंपॉर्टेंट बात देखना, एवरेज साइज 30 mm है, लेकिन आप इंडिविजुअल एग्रीगेट्स को जब देखोगे तो उनकी साइज तो अलग अलग होगी, डेफिनेटली अलग अलग होगी, क्योंकि ये तो एवरेज साइज है. अब उनकी साइज अलग अलग होगी तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होगा कि यहां पे जो एग्रीगेट रिटेन्ड है उसमें हो सकता है कि उसका लेंथ विड्थ ठीक हो, वो एवरेज साइज से मैच कर रहा हो, लेकिन थिकनेस बहुत कम हो. ऐसा हो सकता है, तब भी वो रिटेन होगी यहां, क्योंकि वो पास तो नहीं होगी, वो रिटेन हो जाएगी. तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी एग्रीगेट इसमें प्रेजेंट हो इस सैंपल में जिनका एवरेज साइज तो 30 mm है, तो लेंथ विड्थ तो ठीक है लेकिन उसका थिकनेस बहुत कम है. या फिर ऐसा एग्रीगेट हो सकता है जिसका विड्थ और थिकनेस तो ठीक है, लेंथ बहुत ज्यादा है, वो भी यहां रिटेन हो जाएगा. मतलब क्या है कि ये जो सैंपल साइज है, ये जो सैंपल हमारे पास है 20 to 40 mm का इसका एवरेज साइज है, मीन साइज 30 mm है. लेकिन अगर जब आप इंडिविजुअल एग्रीगेट्स को देखेंगे तो कुछ एग्रीगेट्स जो होंगे वो मीन से काफी ज्यादा डेविएट कर रहे होंगे, आइदर इन टर्म्स ऑफ थिकनेस और इन टर्म्स ऑफ लेंथ. अगर वो मीन से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहे होंगे तो ऐसे एग्रीगेट्स को हमें क्या करना है, वो ओवरऑल उनका डायमेंशन डेविएट नहीं कर रहा है, वो तो रिटेन्ड है, लेकिन एक डायमेंशन बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, तो ऐसे एग्रीगेट्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. और ऐसे एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 बाउंड्रीज बनाई हैं. अब देखिए, ये मीन साइज है, ये मीन साइज है. अब इसके इधर एक बाउंड्री हमने बनाई और इधर हमने एक बाउंड्री बनाई. अब मैंने बोला कि अब मैं एक एक एग्रीगेट को देखूंगा, यहां पे सैंपल में तो हजारों एग्रीगेट है, मैं अब एक एक एग्रीगेट को देखूंगा और उनकी थिकनेस देखूंगा. ये बैरियर जो है वो किसके लिए? थिकनेस के लिए. और ये थिकनेस देखूंगा कि अगर उस एग्रीगेट की थिकनेस 0.6 टाइम मीन साइज, 0.6 टाइम्स मीन साइज से अगर कम है उसकी थिकनेस, अगर उसकी थिकनेस इससे कम है, अगर इससे बाहर है, इधर है, तो वो हम उसको फ्लैकी कह देंगे. ऐसे एग्रीगेट्स को हम फ्लैकी कह देंगे. जिनके थिकनेस 0.6 टाइम मीन साइज से कम है, अगर थिकनेस इससे कम है तो हम उसको फ्लैकी कह देंगे और वो एग्रीगेट हमारे लिए फ्लैकी की तरह काम करेगा, हम उसको फ्लैकी बोलेंगे. इसी तरह से हम यहाँ पे लेंथ देखेंगे और लेंथ इंडिविजुअल का लेंथ देखेंगे, और अगर किसी का लेंथ 1.8 टाइम्स मीन से ज्यादा होगा, अगर इससे ज्यादा होगा तो हम इसको इलोंगेटेड कह देंगे. और अगर किसी का इन दोनों के बीच में, मतलब थिकनेस इससे कम नहीं है, लेंथ इससे ज्यादा नहीं है, तो वो हमारे नॉर्मल एग्रीगेट्स होंगे जो इस बाउंड्री के बीच में आएंगे. तो हमने 2 बाउंड्रीज बनाई हैं, एक में थिकनेस चेक करते हैं, एक में लेंथ चेक करते हैं. अगर थिकनेस इज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड बाउंड्री तो वो फ्लैकी है, और अगर लेंथ इज मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड बाउंड्री देन वो इलोंगेटेड है. अब अगर हम लोगों को कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकी एग्रीगेट समझ में आ गए. Now what are the flackiness index? So flackiness index is the weight of this flaky aggregate divided by total, जो सैंपल हमने लिया था उसका weight is flackiness index. Similarly elongation index कोई पूछे तो weight of this elongated aggregates divided by the initial sample का जो weight होगा
that will give you elongation index. So this is the basic crux of this concept कि हमें क्या करना है. हमने एक मीन साइज लिया, हमने पास कराया एग्रीगेट्स को, एक सैंपल पे वो रिटेन हुआ, वो सैंपल में एक सीयू पे वो रिटेन हुआ, तो उसका एवरेज साइज ये हमें मिल गया. अब ये जो एवरेज साइज हमें मिला उससे हमने मीन साइज निकाला और हम देखेंगे एक एक एग्रीगेट्स को देखेंगे कि एक एक एग्रीगेट्स का डेविएशन ज्यादा तो नहीं है. अगर थिकनेस उसका डेविएट 0.6 टाइम मीन साइज से ज्यादा कर रहा है, कम है, इससे कम है, तो वो हमारा फ्लैकी है. और अगर उसका लेंथ 1.8 टाइम्स मीन साइज से ज्यादा है तो वो क्या है, इलोंगेटेड है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फ्लैकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स का. अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको. तो फ्लैकीनेस टेस्ट की अगर हम बात करें, फ्लैकीनेस टेस्ट करते कैसे हैं, तो फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट करते कैसे हैं, तो इसके लिए हमारे पास अब आप सैंपल साइज हम ले ही चुके हैं. सैंपल साइज आपका ये 30 mm का मीन साइज है. तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए क्या तरीका होता है, सिंपल देखिए. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं फ्लैकीनेस इंडेक्स की, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, it is fraction of aggregates which are having their least dimension, less than, least dimension का मतलब क्या होता है, thickness, their least dimension, that is thickness, less than, their least dimension, that is thickness, less than 0.6 times mean dimension, 0.6 times mean dimension of the aggregate. ठीक है. So it is fraction of aggregate which are having their least dimension, that is thickness, less than 0.6 times mean dimension of the aggregate sample. ठीक है. तो aggregate sample के mean dimension के अगर 0.6 times से कम है, then it is called as flaky aggregate. ठीक है. To perform this test, thickness gauge is used. To perform this test, thickness gauge is used. ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग थिकनेस गेज का यूज करते हैं. अब ये थिकनेस गेज क्या होता है जरा देखो. टू परफॉर्म दिस टेस्ट, थिकनेस गेज इज यूज्ड. व्हाट इज दिस थिकनेस गेज? ये होता है आपका थिकनेस गेज. दिस इज द थिकनेस गेज. ये यूज होता है. अब इसमें आपको क्या करना होता है, पास करा के देखना होता है एग्रीगेट्स को. ठीक है. अब आपने कोई साइज मान लीजिए ले लिया, हमने वहां पे साइज ले लिया था 20 to 40. ठीक है. तो वो तो जस्ट एक क्राइटेरिया था. यहां पे जो साइज होता है वो साइज इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं. चलो हम पिछले केस में साइज चेंज कर लेते हैं, इसको 40 to 50 कर लेते हैं. यहां पे जो साइज है ये मान लेते हैं, ये दिस इज 50 mm. कोई बात नहीं, साइज एज पर द थिकनेस गेज हम यहां कंसिडर कर ले रहे हैं. और इसको मान लेते हैं 40 mm. ठीक है. तो ये 40 mm हो गया. तो एवरेज साइज क्या हो गया, 40 mm टू 50 mm. कॉन्सेप्ट वही है. तो ये मीन साइज इसका क्या हो गया, 40 to 50 mm. ठीक है. 40 to 50 mm by 2, तो कितना हो गया, 45. नाउ इट बिकम 45, देन इट बिकम 45 mm. तो हमारा मीन साइज जो हमने 20-40 लिया था वो हमने 40 to 50 ले लिया ताकि थिकनेस गेज से एग्जैक्टली मैच करा सके. तो हमने ये ले लिया 50 to 40 वाला. तो ये आपका ओपनिंग, इसमें एक थिकनेस गेज में एक ओपनिंग है. और इस थिकनेस गेज का ओपनिंग किसके लिए है, 50 to 40 mm के लिए है. इसके लिए है 50 to 40 mm के लिए, 50 to 40 mm के लिए ये थिकनेस गेज की ओपनिंग है. अब देखिए इस 40 to 50 mm का ओपनिंग, तो इसमें बहुत सारी ओपनिंग हम ये ढूंढ लेंगे अपने मीन साइज के अकॉर्डिंग. अपने मीन साइज के अकॉर्डिंग हम लोग ये ढूंढ लेंगे और हम अपने मीन साइज के अकॉर्डिंग इसमें देख लेंगे कि अच्छा ये ओपनिंग है. अब अगर देखिए आप ये ओपनिंग का साइज, अब इसमें हमें क्या चेक करना है, थिकनेस गेज है और हम लोग फ्लैकीनेस इंडेक्स चेक कर रहे हैं, तो थिकनेस चेक करेंगे. तो हमें ये साइज पता करना है. तो ये साइज क्या होता है, 0.6 टाइम मीन साइज. और 0.6 टाइम मीन साइज कितना है, 45. तो 45 इंटू 0.6 कितना हो गया, 0.6 इंटू 45, ये कितना हो गया, 27. तो अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आता है कि अगर मीन साइज ऑफ एग्रीगेट 40 to 50 है तो थिकनेस गेज में उसकी ओपनिंग साइज क्या होगी. तो ये 45 कैसे आया, ये बेसिकली देखिए आपका मीन साइज 50, यहां पे लिखा हुआ है 40 to 50 mm का एग्रीगेट है, ये एवरेज साइज है. तो मीन कितना हो गया, 40 + 50 by 2, ये आपका मीन हो गया, दैट इज 45. और जो उसका थिकनेस होगा, फ्लैकीनेस इंडेक्स में थिकनेस जो होगा, थिकनेस फॉर फ्लैकीनेस, तो फ्लैकीनेस के लिए जो उसका थिकनेस गेज में होगा वैल्यू, दैट विल बी 0.6 टाइम दिस 45 एंड दिस इज 27. तो यही 27 आपको यहां दिख रहा है, दिस इज द
27. नाउ यू कैन सी हियर. तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कंसर्न है. बाकी सारे ओपनिंग से अब हमें मतलब नहीं होगा, हमने अपने सैंपल के हिसाब से एक ओपनिंग सेलेक्ट कर लिया. और अब हम क्या करेंगे कि इस ओपनिंग के थ्रू, ये ओपनिंग हमने सेलेक्ट कर लिया. नाउ थ्रू दिस ओपनिंग, अब इस ओपनिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ईच एग्रीगेट्स are passed through corresponding opening one by one. ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग ओपनिंग के थ्रू एक एक एग्रीगेट्स को हम 1 by 1 पास करा के देखेंगे. ईच एग्रीगेट इज पास थ्रू करस्पॉन्डिंग ओपनिंग 1 by 1. और मिनिमम 200 नंबर्स होते हैं. मिनिमम 200 नंबर्स. कितने मिनिमम नंबर पास कराएंगे, 200 नंबर्स. अब देखिए, जब हम इस ओपनिंग के थ्रू पास कराएंगे तो जो कम थिकनेस का एग्रीगेट होगा वो तो पास हो जाएगा, और जो बड़े थिकनेस का एग्रीगेट होगा, जो ज्यादा थिकनेस का एग्रीगेट होगा, वो पास नहीं होगा. अब जो पास हो गया उसका थिकनेस 0.6 टाइम्स से छोटा है, तभी तो पास हो गया. मतलब उसका थिकनेस बहुत कम है, क्योंकि वो थिकनेस मीन साइज के 0.6 से भी कम है, तभी तो वो पास हो गया. मतलब उसका थिकनेस 0.6 टाइम मीन साइज से कम है, तो वो एग्रीगेट्स क्या होगा, फ्लैकी होगा. ठीक है. तो द पास्ट एग्रीगेट will have thickness less than 0.6 times mean value, then these are flaky aggregate. जो भी पास हो गए उनका साइज 0.6 टाइम मीन से कम है, तो ये एग्रीगेट्स क्या है, बेसिकली ये फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं. then percentage of flaky aggregates with respect to original weight, with respect to initial weight is called as flackiness index. तो क्या किया, समझ में आया आपको कि ये जो एग्रीगेट्स पास हो गए वो थिकनेस उनकी कम होगी तभी पास हो गए, तो उनका वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट. तो आपको यहां पे दिख सकता है कि फ्लैकिनेस इंडेक्स इक्वल टू क्या हो गया, फ्लैकिनेस इंडेक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला है कि पास्ट एग्रीगेट्स, जो पास हो गए हैं एग्रीगेट्स और जो कि फ्लैकी हैं, बेसिकली फ्लैकी हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, पास्ट एग्रीगेट का वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू फ्लैकिनेस इंडेक्स. और ये होता है आपका फ्लैकिनेस इंडेक्स. फिर से समझो क्या किया हमने. फ्लैकिनेस इंडेक्स के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने एग्रीगेट का एक सैंपल लिया, फिर उसका हमने एक देखा कि ये किससे पासिंग है, किस पे रिटेनिंग है. तो हमने ये मान लिया कि ये 50 mm पासिंग है, 40 mm रिटेनिंग है. फिर उसका हमने मीन साइज निकाल लिया 45. अब हम इसको टेस्ट करने गए तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ओपनिंग ढूंढ लिया, ये ओपनिंग उसके करस्पॉन्डिंग मिल गई. अब इस ओपनिंग में ये ओपनिंग का जो थिकनेस का साइज होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, वो लिखा होता है ऑलरेडी, लेकिन हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी 0.6 टाइम्स मीन साइज, वो 27 हो गया. अब इसके थ्रू हमें पास करा के देखना है, तो एक एक एग्रीगेट को हमने इसके थ्रू पास कराया और थिकनेस के अलॉन्ग पास कराया, ताकि हम उसका थिकनेस चेक कर रहे हैं. जब हम थिकनेस के अलॉन्ग पास कराए तो कुछ एग्रीगेट्स होंगे जो पास हो जाएंगे, कुछ एग्रीगेट्स रुक जाएंगे. जो पास हो जाएंगे वो बेसिकली फ्लैकी होंगे, क्योंकि उनका थिकनेस कम है, तभी तो वो पास हो गए. जो पास हो जाएंगे वो फ्लैकी होंगे, क्योंकि उनका थिकनेस कम होगा, तभी वो पास हो गए. तो वो पास हो गए तो वो फ्लैकी हो गए. तो उनका वेट हमने निकाल लिया. जैसे मान लीजिए 5 kg का सैंपल था, तो 1 kg पास हो गए थे, 4 kg नहीं पास हुए थे, तो 1 kg फ्लैकी हो गए. तो 1 kg डिवाइडेड बाई 5 kg विल गिव यू flackiness index. So this is the simple concept of this test, that is flackiness index test. एक नोट इसमें ध्यान रखना है कि this test is not applicable for size less than 6.3 mm. ये IS कोड में क्लियरली लिखा हुआ है कि बहुत छोटे साइज के एग्रीगेट्स के लिए हम लोग ये फ्लैकनेस इंडेक्स नहीं करेंगे, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. सो दिस इज फ्लैकनेस इंडेक्स टेस्ट. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट पे. इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट पे आते हैं. इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट
देखो जब हम इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट की बात करते हैं, नाउ इट इज इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, तो इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट को पास करा के देखते हैं। तो अभी भी जो हमारा एग्रीगेट साइज है मान लेते हैं वो 40 mm से 50 mm है, 40 mm to 50 mm है। तो मीन साइज आपका क्लियर है, मीन साइज विल बिकम 40 to 50 by 2 दैट इज 45 mm। तो मीन साइज ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। जो सैंपल हमने फ्लैकी के लिए लिया था, जो सैंपल हमने समझने के लिए लिया था, वही फ्लैकी के लिए लिया है, वही हमने इलोंगेटेड के लिए लिया है। अब आप समझिए इसमें, तो इलोंगेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो यहां हम लिख सकते हैं कि इट इज फ्रैक्शन ऑफ aggregates in any sample, fraction of aggregate in any sample which are having their greatest dimension, more than greatest dimension, that is length, more than 1.8 times mean dimension, which are having their greatest dimension more than 1.8 times mean dimension. So this is the condition, ठीक है। To perform this test 1.8 times mean dimension, to perform this test, अब इसको परफॉर्म करने के लिए to perform this test length gauge is used. To perform this test length gauge is used. इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए लेंथ गेज यूज होता है। और अब आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस लेंथ गेज। टू परफॉर्म दिस टेस्ट लेंथ गेज इज यूज्ड एंड दिस इज द लेंथ गेज, दिस इज द लेंथ गेज। देखो जरा आप इसको, दिस इज द लेंथ गेज। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये लेंथ गेज यहां लिखा हुआ है, दिस इज द लेंथ गेज जो यूज होता है, दिस इज द लेंथ गेज। अब इसमें भी हमें ढूंढना है कि हमारा 40 to 50 mm वाला ओपनिंग कहाँ है। तो ये देख सकते हैं आप 50 to 40 mm वाला ओपनिंग ये है, तो ये ओपनिंग आपका 50 to 40 mm का होगा। दिस ओपनिंग इज फॉर 40 to 50 mm। अब कितने साइज का ओपनिंग होगा, तो आपको याद होगा कि 1.8 टाइम्स मीन ऑफ द 40 to 50 लाइक दिस, एंड ये अगर आप कैलकुलेट करें तो आएगा 81 mm। और यहां पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 81 mm। सो दिस इज द ओपनिंग साइज, ठीक है। ये ओपनिंग साइज होगी। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ओपनिंग साइज, समझ में आ रहा है। ये जो हम पहले ढूंढ लेंगे कि कौन सा साइज है और उसके बाद उसका मीन निकाल के उसमें 1.8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ गेज के लिए। अगर यही थिकनेस गेज की बात करते हैं तो 0.6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो 0.6 टाइम होता है, 1.8 टाइम्स होता है। सो दिस इज, तो यहां पे हमें मिल गया ये ओपनिंग। अब इस ओपनिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस ओपनिंग के थ्रू अब हम लोग क्या करेंगे कि ईच एग्रीगेट इज पास्ड थ्रू करस्पॉन्डिंग ओपनिंग, तो करस्पॉन्डिंग ओपनिंग के थ्रू हर एग्रीगेट को हम पास कराएंगे। और इसमें भी मिनिमम 200 नंबर्स होने चाहिए। मिनिमम 200 नंबर्स हैं और हर नंबर को हम उसके थ्रू पास कराएंगे, ठीक है, 1 by 1, और ये पासिंग 1 by 1 होगी। नाउ द रिटेन्ड एग्रीगेट, अब देखिए जब आप पास कराएंगे अलोंग द लेंथ, और ये किसके अलोंग करेंगे, लेंथ के अलोंग, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग लेंथ चेक कर रहे हैं। अब अलोंग द लेंथ करेंगे, लेंथ के अलोंग करेंगे। अब देखिए अगर ये सारे के सारे एग्रीगेट्स जो हमने इसके थ्रू पास कराए, उसमें से कुछ एग्रीगेट होंगे जो पास हो जाएंगे और कुछ होंगे जो रिटेन हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे हम कहेंगे उनका लेंथ कम है, तभी तो पास हो गए, क्योंकि लेंथ के लॉन्ग पास करा रहे हैं। और कुछ होंगे जो रिटेन हो जाएंगे, अगर रिटेन हो जाएंगे तो हम कहेंगे उनका लेंथ ज्यादा है। तो यहां पे बताइए इलोंगेटेड कौन होगा, जो पास हो जाएगा वो इलोंगेटेड होगा या जो रिटेन हो जाएगा वो इलोंगेटेड होगा। कॉमन सेंस से सोच के बताइए यहां पे इलोंगेटेड कौन होगा, जो पास हो जाएगा वो इलोंगेटेड होगा या जो रिटेन होगा वो इलोंगेटेड होगा। आप कहेंगे सर जो पास हो गया वो तो छोटे हैं ना, तो उनसे हमें दिक्कत नहीं है। रिटेन हो गए वो दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, 1.8 टाइम से बड़े हैं, तभी तो रिटेन हुए हैं। इसका मतलब यहां पे जो रिटेन हुआ है वो इलोंगेटेड है, ये आपको समझना है। तो देन वेट ऑफ रिटेन्ड एग्रीगेट्स इज कैलकुलेटेड। रिटेन्ड एग्रीगेट्स इज कैलकुलेटेड। तो हम लोग जो रिटेन्ड एग्रीगेट्स हैं उनका वेट कैलकुलेट करते हैं, और यहां पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं इलोंगेशन इंडेक्स। जब हम इलोंगेशन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, रिटेन्ड वेट जो आपके रिटेन्ड हो गए, रिटेन्ड वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। और ये जो रिटेन्ड हुए हैं यही इलोंगेटेड हैं, बेसिकली ये इलोंगेटेड है।
तो रिटेन्ड वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू इलोंगेशन इंडेक्स। जैसे आपने 5 kg का सैंपल लिया था और उसमें से 1 kg रिटेन हो गए, 4 kg पास हो गए, तो इलोंगेशन इंडेक्स क्या हो गया 1/5 दैट इज 20%। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी टेस्ट, दिस टेस्ट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, दिस टेस्ट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, also not applicable for aggregate size less than 6.3 mm, लेस देन 6.3 mm, ये ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि जो लास्ट जो वैल्यू लिखा है वो 6.3 mm ही लिखा है, इससे छोटा यहाँ पे है ही नहीं, इससे छोटा सीव के लिए ओपनिंग ही नहीं है, तो लास्ट साइज होता है 6.3 mm, उससे छोटे के लिए अवेलेबल नहीं होता है। सो दिस इज द इलोंगेशन इंडेक्स। तो समझ में आया आपको, फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स दोनों के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। लेंथ गेज यूज होता है इलोंगेशन इंडेक्स में, फ्लैकीनेस इंडेक्स में थिकनेस गेज यूज होता है। इसमें थिकनेस के लॉन्ग पास कराते हैं, इसमें लेंथ के लॉन्ग पास कराते हैं। जो इसमें पास हो जाते हैं वो फ्लैकी होते हैं, जो इसमें रिटेन हो जाते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ थिकनेस गेज एंड लेंथ गेज एंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट। नाउ एक इसमें नोट देखिएगा, एक नोट में लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो इंडिविजुअली हमने थिकनेस, फ्लैकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया है, विच आई हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। इट इज individual elongation flackiness and elongation testing, it is individual flackiness and elongation testing। बट कई बार हम लोगों को कंबाइंड टेस्टिंग करनी पड़ती है, कई बार हमें कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। वो हम लोग कैसे करते हैं वो हमें समझना है। कई बार हमें कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है, वो कैसे करते हैं। तो इन केस ऑफ कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्टिंग, in case of combined flackiness and elongation testing, first of all flackiness index is determined using whole sample, and then flaky aggregates are removed, and remaining sample is used for elongation index testing। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालेंगे। होता क्या है, जैसे एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, ये याद रखना है नोट आपको। जैसे आपके पास टोटल 5 kg सैंपल था, टोटल सैंपल, इट इज द होल सैंपल, टोटल सैंपल आपका 5 kg था। अब आपने पहले किया फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट किया, तो फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट किया और आपने देखा कि 1 kg फ्लैकी हैं और 4 kg आपके नॉर्मल हैं, तो 1 kg फ्लैकी हैं, तो आपका फ्लैकीनेस इंडेक्स कितना हो गया। अब आपने 1 kg फ्लैकी जो थे उनको हटा दिया, तो यहाँ पे 1 kg बाई 4 kg, यहाँ पे फ्लैकीनेस इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100। यहाँ से फ्लैकीनेस इंडेक्स 1/5 इंटू 100, क्योंकि टोटल 5 है, तो यहाँ से आपका फॉर एग्जाम्पल ये 20% आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट करेंगे, इलोंगेशन इंडेक्स जब टेस्ट करेंगे, तो अब हम लोग बताइए कितना सैंपल लेंगे। अब हम 5 लेंगे कि 4 लेंगे। अब हम लोग जो बेस में लेंगे वो 4 kg ही लेंगे। अब क्योंकि ये 1 kg जो फ्लैकीने थे उसको हमने हटा दिया है, तो जो बचा हुआ है वो 4 kg लेंगे, और 4 kg में मान लो 2 kg आपको इलोंगेटेड मिल गए, तो अब जो इलोंगेशन इंडेक्स आपको मिलेगा वो 2 kg बाई 4 kg मिलेगा, लाइक दिस। सो दिस इज द वे। सो ये कंबाइंड टेस्टिंग का एक तरीका है कि कंबाइंड टेस्टिंग में हम लोग सेकेंड टाइम जब इलोंगेशन टेस्टिंग करते हैं तो उसी पोर्शन को लेते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसी पोर्शन को लेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है। जो फ्लैकी में निकल गया उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इस टाइप की टेस्टिंग हम लोग करते हैं, तो इसको कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ कुछ और टेस्ट आपको एग्रीगेट से रिलेटेड डिस्कस करने में जल्दी से करता हूं। इसमें होता है एक क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो व्हाट इज क्रसिंग स्ट्रेंथ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्रसिंग स्ट्रेंथ, सो क्रसिंग
crushing strength is resistance against gradual compressive load, ये याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड लगाएंगे एग्रीगेट के ऊपर और उससे एग्रीगेट की क्रशिंग होगी, तो उसी से रिलेटेड हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड in terms of aggregate crushing value. It is calculated in terms of aggregate crushing value. तो ये ध्यान रखिएगा, ACV, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ACV कहते हैं। सो इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड एज ACV। इट इज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज ACV। इसके टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर, ये देखिए आप। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका एक पिस्टन इस टाइप का अरेंजमेंट है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, पहले एग्रीगेट्स की सीविंग करते हैं और एग्रीगेट्स को पास कराते हैं। कहाँ से पास कराते हैं, 12.5 mm से पास कराते हैं और 10 mm पे रिटेन कराते हैं। तो 12.5 mm से पासिंग एग्रीगेट होंगे और 10 mm पे रिटेनिंग एग्रीगेट्स होंगे। ये एग्रीगेट्स होते हैं जो 12.5 mm पासिंग है और 10 mm रिटेनिंग है। ये एग्रीगेट्स हमने यहाँ से लिए, ये एग्रीगेट्स हमने लिए। अब इन एग्रीगेट्स को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। सिलेंडर का डायमेंशन आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट एपरेटस, और इसमें आपका ये सिलेंडर का डायमेंशन है। ये पिस्टन लगा हुआ है, ये प्लंजर ऊपर से लगा हुआ है जिससे हम लोडिंग लगाएंगे। तो इस सिलेंडर के अंदर हमने प्लेस कर दिया और इसको प्लेस करेंगे हम 3 लेयर में, लाइक दिस। ये 3 लेयर में हम इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीगेट्स आर प्लेस्ड in cylinder in 3 layers and compaction of each layer is done 25 times। तो जो कॉम्पैक्शन करेंगे वो 25 टाइम्स करेंगे, सबका कॉम्पैक्शन 25 टाइम्स करेंगे। कितना लोडिंग लगाएंगे, ये जो लोडिंग होगी, अब इसमें हम लोग लोडिंग लगाएंगे, दिस विल बी 40 टन, 40 टन तक की लोडिंग लगाएंगे, लेकिन अचानक से नहीं लगाएंगे, 4 टन पर मिनट के रेट से लगाएंगे। ठीक है, तो 4 टन पर मिनट के रेट से हम इस पे लोडिंग लगाएंगे और इसको धीरे धीरे ग्रेजुअल लोडिंग लगेगी। कब तक लगाएंगे, 40 टन तक हम इस पे लोडिंग लगाएंगे 4 टन पर मिनट के स्पीड से। और जब हम इस पे लोडिंग लगाते जाएंगे तो आपको पता है इस लोडिंग की वजह से क्रश होगा। क्रश होने के बाद इसमें जो अंदर सैंपल है वो क्रस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इस सैंपल को हम बाहर निकालेंगे और इसको हम 2.36 mm की सीव से पास कराएंगे। 2.36 mm की सीव जो होगी उससे हम पास कराएंगे। जब इसको हम 2.36 mm से पास कराएंगे तो कुछ एग्रीगेट्स यहाँ पे जो पहले से छोटे हो चुके होंगे क्रश होने के बाद, लेकिन कुछ यहाँ पे रिटेन होंगे और कुछ जो होंगे आपका यहाँ से पास हो जाएंगे, फाइनर होंगे तो वो पास हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो होंगे वो फाइनर होंगे, फाइनर कंटेंट, तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2.36 से जो छोटे हैं उनको हम फाइनर बोल रहे हैं। अब हम लोग वेट देखेंगे। देखिए, जो इसको फिल किया था, तो इनिशियल वेट जो इसमें फिल किया था वो इनिशियल वेट मान लेते हैं, दैट इनिशियल वेट वाज x। इनिशियल वेट, लेट इनिशियल वेट इज x। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटेन्ड वेट है, नाउ आई एम राइटिंग हियर द रिटेन्ड वेट, ये जो यहाँ पे रिटेन्ड वेट है, दिस इज द रिटेन्ड वेट, ये मान लेते हैं है y। ठीक है, तो जो पास हो गए वो इनिशियल वेट, जो यहाँ पे इनिशियली लिया था हमने वो इनिशियल वेट x था और जो यहाँ रिटेन्ड वेट है वो y है। अब हम लोग इसके नीचे कैलकुलेट करेंगे ACV, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। सो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का डेफिनेशन क्या होगा, ये होगा फाइनर कंटेंट दैट इज क्रस्ड कंटेंट, जो क्रशिंग हो गई है, क्रशिंग कंटेंट डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट इनटू 100। अब आप बताइए फाइनर कंटेंट का वेट क्या होगा। इनिशियल x था, जो रिटेनिंग है y है, तो फाइनर कितना हुआ, आप कहेंगे सर x माइनस वाई हुआ, ऑब्वियस सी बात है। इनिशियल x था, जो बचा है वो y है, तो फाइनर जो चला गया वो फाइन होके वो कितना था, x माइनस वाई, और डिवाइडेड बाई x इंटू 100, ये आपको देगा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ACV। और IS कोड, अब आप मुझे बताइएगा कॉमन सेंस है कि ये ACV ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए।
अब आप एग्रीगेट की क्वालिटी के हिसाब से बताइए कि ये एसीवी ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। तो अगर एसीवी ज़्यादा, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्रसिंग ज़्यादा हो रही है। अगर क्रसिंग ज़्यादा हो रही है तो इट इज़ गुड और बैड? इट इज़ बैड। एग्रीगेट को क्रस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एसीवी की वैल्यू कम होनी चाहिए, एसीवी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लिमिट है कोड में कि एसीवी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर वियरिंग कोर्स ऑफ पेवमेंट, फॉर सरफेस कोर्स ऑफ पेवमेंट, फॉर सरफेस कोर्स ऑफ पेवमेंट। ठीक है, ये पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए है। और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर अदर कंस्ट्रक्शन। तो किसी और कंस्ट्रक्शन के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सरफेस कोर्स के लिए ये 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द बेसिक construction, that is ACV value. So you should kept in mind. So this is aggregate crushing strength test. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट क्या होता है? टफनेस क्या होती है? टफनेस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल resistance against impact loading, not gradual, it is resistance against impact loading. अगर हमने सडन लोडिंग किया, इम्पैक्ट लोडिंग किया, तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं टफनेस। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। It is calculated in terms of aggregate impact value AIV. It is calculated in terms of aggregate impact value AIV. अच्छा, कैसे परफॉर्म करते हैं ये टेस्ट जरा देखिए। इसको परफॉर्म करने के लिए ये एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द एपरेटस विच इज यूज्ड। अब इस एपरेटस के अंदर जो हम यूज करते हैं तो करते क्या है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग सैंपल को पास कराते हैं 12.5 mm सीव से और वो रिटेन होना चाहिए 10 mm सीव पे। तो ये सैंपल हम लोग लेते हैं जो इससे पासिंग होता है और इस पे रिटेनिंग होता है। तो 12.5 mm सीव से पासिंग है, 10 mm पे रिटेनिंग है। नाउ दिस सैंपल इज फिल्ड इनसाइड दिस कंटेनर। ये इस कंटेनर के अंदर फिल किया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे, ये जो सैंपल है इसको हम इस कंटेनर के अंदर फिल कर देते हैं। अब ये आपका सिलिंड्रिकल स्टील कप है जो आपका इसमें फिल हो जाता है। नाउ अब इसके ऊपर हम ये हैमर गिराते हैं। इसके ऊपर ये जो हैमर है, ये हैमर हम लोग जो है हैमर ड्रॉप करते हैं। और ये जो हैमर है इसका वेट आप देख सकते हैं 13.5 से 14 kg का ये हैमर है। और इस हैमर को हम ड्रॉप करते हैं। कितनी हाइट से कर रहे हैं ड्रॉप ये भी आप देख सकते हैं 38 सेंटीमीटर के आसपास। और इसको हम इस पर ड्रॉप करते हैं। यहाँ लॉक पॉइंट ऑफ रिलीज होता है, यहाँ से हम रिलीज करते हैं हैमर को और ये हैमर जो है, ये हैमर इसके ऊपर ड्रॉप होता है। ये जो हैमर ड्रॉप होता है तो हम इसको इस तरह से ड्रॉप करते हैं और इसको 15 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। 15 नंबर ऑफ ब्लोज इसको हम लोग देते हैं। तो एग्रीगेट्स हमारा इसमें फिल है, यहाँ पे एग्रीगेट्स फिल है और ये नीचे बेस होता है। इसके ऊपर ये हैमर हम ड्रॉप करते हैं और हैमर जो हम ड्रॉप करते हैं वो 38 सेंटीमीटर से हाइट से ड्रॉप करते हैं। कितने केजी का हैमर होता है? 13 to 14 केजी का हैमर होता है जिसको हम ड्रॉप करते हैं। और इतना कितनी बार ड्रॉप करते हैं? 15 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। जब आप इसको 15 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें एग्रीगेट होगा वो क्रश होगा, फाइन होगा। जो एग्रीगेट होगा क्रश होगा या फाइन होगा, वो एग्रीगेट हम लोग अब इसमें हमें क्रस्ट या फाइन एग्रीगेट मिल जाता है। उसके बाद अब इस एग्रीगेट को हम यहां से बाहर निकालते हैं और इसको 2.36 mm की सीव से पास कराते हैं। तो जो इनिशियल वेट यहां मान लिए जो था वो x मान लीजिए, जो इनिशियली आपने इसमें फिल किया था। अब इसके बाद इसके थ्रू पास कराएंगे तो कुछ एग्रीगेट्स यहाँ पे देखिए, कुछ एग्रीगेट रिटेन होंगे और बाकी यहाँ पे पास हो जाएंगे। बाकी पाउडर होंगे तो वो पास हो जाएंगे। तो ये फाइनर कंटेंट होगा जो पास हो जाएगा। और जो इधर ये है क्या है, ये रिटेन्ड एग्रीगेट्स हैं। ये जो सरफेस पे क्या है, रिटेन्ड एग्रीगेट्स हैं जो रिटेन हो गए। तो ये रिटेन्ड है और जो फाइनर थे वो पास हो गए। अब हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे AIV। अब देखिए AIV, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू AIV। तो क्या होगा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू AIV? दैट विल बी फाइनर कंटेंट, अगेन फाइनर कंटेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, फाइनर कंटेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, ये x है और ये रिटेन्ड एग्रीगेट y है।
तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू 100, तो ये आपका AIV हो गया। अब ये AIV ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? सिंपल सी बात है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि AIV कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा मतलब ज्यादा इंपैक्ट से अफेक्टेड है एग्रीगेट, तो इसको कम होना चाहिए। तो इसके लिए भी लिमिट है कि दिस AIV शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस ऑफ पेवमेंट सरफेस के लिए 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर अदर कंस्ट्रक्शन। तो अदर कंस्ट्रक्शन के लिए 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द AIV टेस्ट, दिस इज AIV और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट और टफनेस टेस्ट। लास्ट टेस्ट एक एग्रीगेट का है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, दैट इज हार्डनेस टेस्ट। सो व्हाट इज हार्डनेस? Hardness is resistance against surface wear and tear, ठीक है, surface wear and tear, surface abrasions, surface के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, surface wear and tear, and that may be due to abrasion, that is called as abrasion or attrition। एब्रेशन और एट्रीशन की वजह से होता है ये। एब्रेशन का मतलब होता है रबिंग, जो रबिंग हो रही है बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल। जैसे गाड़ी रोड पे चल रही है तो उसके टायर और रोड के बीच का एब्रेशन होता है। और एट्रीशन का मतलब होता है रबिंग इन बिटवीन टू सिमिलर मटेरियल। जैसे स्टील से एब्रेशन हो रहा है, सिमिलर मटेरियल, तो इसको हम लोग कहते हैं एट्रीशन और इसको कहते हैं एब्रेशन। तो एब्रेशन या एट्रीशन की वजह से सरफेस पे वियर एंड टियर होता है, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज हार्डनेस, एंड इट इज कैलकुलेटेड in terms of aggregate abrasion value। ये एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू के टर्म्स में कैलकुलेट होता है, दैट इज AAV। इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, दैट इज AAV, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू AAV। और इट इज परफॉर्म्ड बाय लॉस एंजलिस मेथड। तो लॉस एंजलिस मेथड हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली हियर, और उस मेथड से इस हार्डनेस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब देखिए लॉस एंजलिस मेथड क्या होता है, ये नाम याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब लॉस एंजलिस मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये एपरेटस इसमें होता है, दिस इज द एपरेटस। अब इसमें करते क्या है हम लोग, देखिए एग्रीगेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी एग्रीगेट्स होता है एग्रीगेट्स हम लोग ले लेते हैं सैंपल, और एग्रीगेट का नॉर्मली 5 to 10 kg लेते हैं, वो एज पर साइज होता है। इसमें एक टेबल है IS 2386 पार्ट 4 में, वो टेबल आप देख लीजिएगा, और उस टेबल में देखते हैं कि जैसे छोटे एग्रीगेट हैं तो 5 kg ले लेंगे, बड़े एग्रीगेट्स हैं तो 10 kg ले लेंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम एग्रीगेट का वेट डिसाइड कर लेते हैं। तो एग्रीगेट हमने सैंपल ले लिया, अब इस एग्रीगेट को इसमें हम प्लेस कर देते हैं इस ड्रम के अंदर। ये आप दिख रहा है, ये रोटेटिंग ड्रम दिख रहा है आपको, इस रोटेटिंग ड्रम के अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं। ये जो रोटेटिंग ड्रम है ये रोटेट करता है, ये रोटेटिंग ड्रम है जो रोटेट करता है 30 to 33 RPM से ये रोटेटिंग ड्रम रोटेट करता है। और इसके अंदर जब हम एग्रीगेट प्लेस करेंगे तो उसमें स्टील स्फेयर्स होंगे, स्टील बॉल्स होंगे, जिनको हम लोग चार्ज कहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, स्टील के बॉल्स हैं। ये स्टील के जो बॉल्स होते हैं जिनको हम लोग चार्ज कहते हैं, ये नॉर्मली 48 mm डाया के होते हैं, 48 mm डाया के होते हैं, और इनका वेट जो होता है 390 से 445 ग्राम, ये इनका वेट होता है। तो दिस इज द वेट ऑफ द दिस चार्जेस, और ये 48 mm डाया के होते हैं। मिनिमम 6 नंबर में होते हैं, नॉर्मली 6 to 12 इन नंबर, तो 6 to 12 इन नंबर्स होते हैं, नंबर्स इनका 6 से 12 होता है। अब इनको हम लोग इसमें प्लेस कर लेंगे, एग्रीगेट्स को भी प्लेस कर दिया, इन चार्जेस को भी प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद ये रोटेट करेगा 30 to 33 RPM के रेट से, एंड अराउंड 500 to 1000 रोटेशन हम लोग देते हैं, 500 to 1000 रोटेशन देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वेट कितना है, जैसे 10 किलो वेट है तो 1000 रोटेशन, 5 किलो वेट है तो 500 रोटेशन, तो 500 to 1000 रोटेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। जब 500 to 1000 रोटेशन हम लोग इसको देते हैं, उसके बाद आपको पता है कि ये जो स्टील बॉल्स हैं उनके बीच में और एग्रीगेट्स के बीच में क्या होगी, रबिंग होगी, एब्रेशन होगा, और एब्रेशन से फाइनर कंटेंट जनरेट होंगे। तो अब हम लोग जो यहाँ से फिर बाहर निकालते हैं एग्रीगेट्स को, उसको हम पास कराते हैं 1.7 mm की सीव से। यहाँ सीव साइज हम थोड़ा और फाइनर ले लेते हैं
तो 1.7 mm की सीव से हम इसको पास कराते हैं। तो जब हम इसको 1.7 mm की सीव से पास कराते हैं तो कुछ एग्रीगेट्स आपको पता है रिटेन होंगे, यहाँ पे कुछ एग्रीगेट्स आपको पता है यहाँ पे रिटेन होंगे, और कुछ फाइनर जो होंगे वो पास हो जाएंगे लाइक दिस यहाँ पे। तो मान लेते हैं जो इनिशियल वेट था, जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, इनिशियल वेट जो था, इनिशियल वेट आपने जो लिया था, इनिशियल वेट मान लेते हैं x है, इनिशियल वेट मान लीजिए x है, और ये जो रिटेन्ड वेट है, दिस इज द रिटेन्ड वेट, वो रिटेन्ड वेट आप मान लीजिए y है। ठीक है, तो इनिशियल वेट हमने x लिया था, वेट हमने लिया, उसको इस रोटेटिंग ड्रम के अंदर इंसर्ट किया, रोटेटिंग ड्रम को फिर रोटेट कराया, इस स्पीड से कितने नंबर ऑफ रोटेशन, 500 to 1000 नंबर ऑफ रोटेशन इसको रोटेट कराया। इसमें सरचार्ज जो ये स्टील चार्जेस हैं उनको ऐड किया। स्टील चार्जेस क्या है, स्टील की बॉल्स हैं बेसिकली, 48 mm डाया की होती हैं, 390 to 445 ग्राम का वेट होता है इनका, नंबर इनका 6 से 12 होता है। इसके अंदर हमने फिल कर दिया और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, और रोटेट कराने के बाद आपको पता है एब्रेशन होगा, और एब्रेशन की वजह से फाइन पाउडर जैसा पार्टिकल जनरेट होगा, और उसको हम लोगों ने ये 1.7 mm की सीव से सीविंग करके देखा। अब उसके बाद कुछ रिटेन हो गया और कुछ पास हो गया। नाउ आई विल कैलकुलेट द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। अब मैं कैलकुलेट करूंगा एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। अब क्या होगा ये एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, दैट विल बी रिटेन्ड वेट, सॉरी फाइनर वेट, जो भी फाइनर कंटेंट होगा, यहाँ पे फाइनर कंटेंट, ये फाइनर कंटेंट है, फाइनर कंटेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, फाइनर कंटेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट। तो जो भी फाइनर कंटेंट है डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनर कंटेंट x माइनस वाई आएगा, क्योंकि इनिशियल वेट x है, रिटेन्ड वेट y है, तो फाइनर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल गिव यू एब्रेशन वैल्यू। और इसकी वैल्यू भी जो है कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली कम होनी चाहिए, क्योंकि एब्रेशन कम होगा तभी आपको वैल्यू कम मिलेगी, अगर एब्रेशन ज्यादा होगा तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होना चाहिए। तो इसकी जो लिमिट है AAV की शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस ऑफ पेवमेंट। ठीक है, तो सरफेस ऑफ पेवमेंट के लिए 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% फॉर अदर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 45 की जगह 50% तक लेते हैं, अदर कंस्ट्रक्शन के लिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज द लिमिट। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये जो है ये आपने डायरेक्टली फाइनर का वेट क्यों नहीं ले लिया, आप पहले रिटेन का ले रहे हैं फिर उसको माइनस करके फाइनर का निकाल रहे हैं, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो एयर के साथ उड़ भी सकते हैं, वो गायब भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो रिटेन्ड है वो तो सॉलिड पार्टिकल है, उनका वेट निकाल लेते हैं, इनिशियल वेट निकाल लेते हैं, तो इनका जो डिफरेंस है उसको हम फाइनर मान लेते हैं, क्योंकि फाइनर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही फाइन हो जाते हैं, तो उनको वेट कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप कहें कि सर इस टेस्ट में आपने इनिशियली सीविंग नहीं करी, क्योंकि बाकी दोनों टेस्ट में आपने इनिशियल सीविंग करी यहाँ पे सीविंग करी, लेकिन इसमें आपने इनिशियल सीविंग नहीं करी, क्योंकि बाकी के टेस्ट में हमने इसलिए सीविंग की क्योंकि जो लोडिंग हम लगा रहे थे वो उसी के अकॉर्डिंग था, सीव साइज के अकॉर्डिंग लोडिंग था, इसीलिए हम लोगों ने ये सीव के अकॉर्डिंग ही लोडिंग लगाई, यहाँ पे भी सीव के अकॉर्डिंग ही लोडिंग लगाई। लेकिन इस केस में हमने कोई भी फिक्स नहीं किया, यहाँ पे देखो हमने रेंज लिखा 5 से 10, 500 से 1000, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे कोई एक सीव नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक सीविंग नहीं होती, यहाँ पे पूरी टेबल है। तो IS 2386 पार्ट 4 आप देखेंगे तो उसमें पूरी टेबल है, और उस टेबल में आप देखिएगा कि अगर छोटे एग्रीगेट हैं तो उनके अकॉर्डिंग वेट होता है, उनके अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन होता है, बड़े एग्रीगेट हैं तो उनके अकॉर्डिंग वेट होता है और उनके अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एज पर द कंडीशन हमें चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ओके, so I have discussed about the remaining portion of mortar and aggregates. In next class we'll discuss about the water which is used for concrete, and then I will discuss concrete. Okay, thank you.